Assalamu alaikum, everyone. Thank you to all those who have joined us live or will be watching the recording. My name is Abdul Sabur. I'm the co founder of Eager Engineers. So, today we have a very special topic with us and a very special guest. So, the topic today is that we're going to discuss about finance playbook, especially for people who are early in their career professionals, be it in 20s or even in their 30s. You'll find this session to be highly relevant, very engaging, and most interestingly, it'll have some actionable insights that I mostly find missing in such webinars or even videos online. So we'll be discussing about the myths, the misconceptions, the stigmas around personal finance, something that I personally have gone through, and most of us go, but as it is a stigma not many of us talk about. We'll further talk about the importance of asset management, understanding about liabilities, the effect of compounding itself, what money is, why is it important in wealth generation, some insights into cash flow management as well. So, this evening we are joined by a very, very special guest. It is my pleasure to host him. His name is Mr. Muneeb Ahmed, Manager Operations at United Energy Pakistan, with well over 10 years of experience in oil and gas industry, a prestigious industry in Pakistan, holding a master's in petroleum engineering, if I'm not wrong, a gold medalist in mechanical engineering from NUST. I'll be addressing one of the elephants in the room as well. He is not a finance guy. He's an engineer like you and me. And one thing that I adore about him is his way of learning. He learns by doing. Perhaps most of the mistakes that we'll be sharing here is something that he might have made himself in his youth and is here Yes. to share the lessons he learned out of them so that we can avoid the pitfalls. And without further ado, Muneeb, the stage is all yours. Jump right in. Thank you for inviting me. I think you did a very good introduction about me. I just say that the topic is very interesting and very dear to me, and I think I've been the advocate of this topic to each and every individual I meet, even he is in 30s, 40s, and 50s. Uh, what I found in the last 10 years of my corporate life, or the challenges that we have, is basically nobody talks about finance. And I'll go back, Mike. I'll take you into back in my experiences. Started when I actually visited out of Pakistan when I was in university. There was a program in which we've been offered an internship outside Pakistan, and we went to UK, and we worked there for like 3 months, somewhere around 3 months. So we met quite different nationalities over there, and that was the turning point which actually triggered everything into me, and what I'm right now, and what the knowledge I carry about the finance. So what happened was, when we went there, we being in the Pakistani universities have never talked about the finances. But when I went there, I found one of my cousins trading in different platforms, even at the college stage. And then when I talked to him, Why are you doing it? Why are you not focusing on the on your studies, and why are you doing your business on the side?" So he told me that in UK it's very common. Like, people start doing businesses at the very early stage, and that really sparked the this into me. Why people do that? खैर, फिर मैं I'll mix into the different language, so that बहुत सारे लोग हमारे पास पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे होंगे. So yeah, that really बिल्कुल, sparked it's me. Yeah, completely multilingual it, और it, it comes बिल्कुल right. So comfortable hmm, conversation. हाँ, so what happened was कि जब मेरे से काफी डिटेल डिस्कशन हुई, that he told me that he's been doing for last 3-4 years, and I think he was by then 16 years, so he was already making good money out of it, and he was doing good in the studies as well. So that really sparked me, कि what's the difference, and why we are not doing it, and why we are lagging behind. Well, well, the story ends over there. After 3 months, I came back to Pakistan, and I started doing some work on it. And whenever I went to anybody, he or she says, "Yeah, you're very young to do it, and just focus on your studies. You're in the line for the gold medal. If you do that, and in at this stage, you might lose focus on your studies." And I really wasn't convinced, and I started reading it. Though I didn't started investing in my university, which I still regret.
Though I started reading it and how to manage my finances once I'm financially stable and independent. So that was the real start of my financial career in as my personal finance career. So हुआ ये कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैंने I asked my father, I've asked my relatives to guide me how to manage money. Nobody gave me a clue, unfortunately, and just as Sabur ne kaha, it's being a taboo in our culture that nobody want to talk about it. And if somebody have the knowledge, they don't even share it, unfortunately. Though we are lucky enough that technology is being updated and a lot of information is available in Pakistan on the websites, and you can always access it. But it's for if in my experience, अगर आपके पास appreciation है ना and knowledge वहाँ पड़ी होगी, but if you don't have the appreciation किसकी value है या वो किस वक्त required है, you will never read it. Somebody needs to push you or somebody needs to direct you कि आपने ये चीज़ करनी है and it will be beneficial. So that's a little bit Perfect. background. Manish, Sorry, that yeah. actually brings me to my first question as well. Okay, Mm, let's take me for example. Why should mm, somebody like me who's in his early 20s, just recently started a job, he's an engineer under training, mm, perhaps not earning the biggest buck. uh, mm, I earn something, I get a monthly pay, उसमें से मैं अपनी मर्जी के spend करता हूँ, I spend some on the family, कुछ बच जाता है कभी नहीं बचता, and whatever I save I spend in the next month. So why should somebody like me who is somewhat busy as well, I don't have a very like simple routine, I do have a somewhat hectic, so why should I invest my time towards learning about personal finance? What's in it for me? mm. Look, for my understanding, जो मेरे पास जो that the concept is near to me, like financial independence. Um, Unfortunately, in the Pakistani culture या Asian culture में आपको basically यही groom किया जाता है. You need to get good education and you need to get a job, right? And you have to do the job from your early 30s or late 20s to till 60 or superannuation. But the concept is changing all over the world. People are now working for 20 years down the line. Like when they graduate, they start some business or start some job and do the right investment and get retired by 40, 40, 45. That's the maximum age they want to work for. Although there are exceptions, people are there in international countries, like in international corporates that actually work for 60 years. But जो उनका टारगेट होता है वो ये होता है कि 40-45 के बाद they don't need a job to run their homes. And that really helps them out to like be fearless. आपको पता है कि you already have a second Hmm. income and you don't have to worry about the basic life expenses. I want to So share you're saying is this. the goal should be have a passive income as soon as you Yep. can, and then if you wish to work, it should be by choice rather than by compulsion. Yes. Ke even after 45 or at the age of 50, you have some quote unquote responsibilities that you have to take care for. So you have to keep on the grind. Hmm. I think Okay. होना ये It's चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल if you talk about me, like I have a goal कि यार मैंने इस एज पे अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करनी है, तो करना क्या चाहिए कि आप अभी अपनी फॉर नाउ अपनी एक्सपेंसेस देखते हो कि ये आपका लाइफस्टाइल है and you if you maintain that lifestyle after 20 years, what amount of money that you require, टाइम वैल्यू फॉर मनी को आप कैलकुलेट करते हो और आपको पता हो जाएगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट मेरी 40 ईयर्स में या 45 ईयर्स में whenever you want to retire, इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि बस एक गोल हो. अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इवन दो यू डोंट हैव अ गोल ना कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट करके इतने पैसे बनाने हैं इस एज तक, तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते और वो फिर स्लिप होते होते इवेंचुअली आप 60 पे पहुंच जाते हैं. तो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज कि पहले तो आपको ये पता हो ना कि आपने गोल पहुंचना कहाँ है, फिर आप डिसाइड करते हैं कि किन 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 इंस्ट्रूमेंट से या किन वेज से मैं उधर पहुंच सकता हूँ. तो फर्स्ट स्टेप फॉर ऑल ऑफ यू दैट आर लिसनिंग इज बेसिकली कि यार आज की तारीख में फॉर एग्जांपल इफ आई एम अर्निंग 100,000 रुपीज अ डे, 100,000 रुपीज अ month. So if and I'm okay with it and I'm maintaining the lifestyle that I want, these 100,000 rupees, uh, eh, how much I need after 20 years to maintain the same lifestyle or after 30 years whenever you want to retire. So ये गोल आपको पहले डिसाइड करना होता है, देन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपने किन मेथड से वो गोल अचीव करना है. तो आई थिंक दैट्स आंसर योर क्वेश्चन ऑन इट. अब मैं आपको एक एग्जांपल
I think my personal, I say one of my very dear friends and actually a family member. He worked very hard and all of the family criticize यार ये मुझसे बाहर चला गया इतनी बड़ी मेहनत की और सब कुछ किया and now I really like admire him कि और उस वक्त तो वो बड़ा orthodox method से कि वो he went outside and started earning and फिर साथ साथ पढ़ता रहा. Now he's somewhere around 40 43 and he went to Canada. He worked very hard, earned good money, and now उसने वहाँ पे पूरे कनाडा में सेटअप कर लिया. Now he's earning in dollars and come back to Pakistan. कहते हैं यार पाकिस्तान की life is very good as long as you're earning dollars. So he's actually in 43, 44 years of age and he's financially independent. He wakes up early in the morning, work for 2 hours, just adjust his inventories in his business, and he's is all good to go. He's free for the whole day. So I think that should be the target. So that and he's doing other business as well in Pakistan. So the target should be कि आपकी passive income एक इतनी generate हो जाए कि इस वक्त आप financial independence हो जाए फिर आप डिफरेंट एरियाज चाहे आपने जॉब करनी है चाहे आपने कोई बिजनेस करना है दैट्स योर ओन चॉइस कि वो चीज़ साथ साथ करते रहें तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई वुड लाइक जो भी सुन रहा है चाहे वो 30s में है 40s में है अर्ली 20s में है या यूनिवर्सिटीज़ में है या यूनिवर्सिटी एग्जिट होने वाले हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो गोल है ना वो ज़रूर आपके जहन में होना चाहिए कि व्हेन यू रियली वांट टू रिटायर एंड लाइक आपके पास पैसिव इनकम की एक सोर्स क्रिएट हो जाए बाय दिस एज so that would be should be the goal for everybody. So can you hear me? I think something happened to his internet. Let's wait till he comes back. Yeah, apologies for the interruption. I got some internet disconnectivity issues. So I got you right. A good anecdote, by the way. Thank you so much for sharing that. इसमें एक Mhm. चीज़ जो मैंने की है, especially at this age, because I try to be financially aware as well. I read a few books here and there, और आपके साथ we have some preceding calls and some good financial awareness sessions. बट इस तरह की कॉम्पैक्ट चीज़ या एक स्ट्रक्चर्ड वे में कॉन्वर्सेशन में ख्याल से हमारी भी कभी उस तरह से हो नहीं पाई. तो Exactly. how important is it कि rather than focusing on the amount of money you invest, the critical timing of it, कि अभी ही इतना important क्यों है, rather than मैं अभी जो है वो महीने में 8-8 हज़ार या 10-10 हज़ार इन्वेस्ट करूँ, I can get into my 30s जब obviously करियर मेरी ग्रो करेगा, my income and earnings would grow with them, so why not just invest later on जब मेरे पास ज़्यादा कैश फ्लो ज़्यादा अर्निंग्स होंगी, अभी करना क्यों इम्पोर्टेंट है. मुझे अभी करने की क्या जरूरत है. I think you made a very good question, and I think that is something that is the crux of investing. It's basically what financial gurus call it as the eight wonder of the world, and it's the compounding effect. Like for example, if you invest 10 rupees today, and if you do it every month, so by the end of the year you have 120 rupees. By the simple math, but actually ऐसा होता नहीं है. 10 रुपीज अगर आपने फर्स्ट मंथ इन्वेस्ट किए हैं वो जो आप जिस इंस्ट्रूमेंट में भी किए हैं आपने वो आपको एक ग्रोथ देगा 5% 10% वट एवर द इंस्ट्रूमेंट इज एक्चुअली गिविंग यू द रिटर्न. तो वो नेक्स्ट मंथ वो 10 रुपीज 10 नहीं रहेंगे, वो 10.5 हो जाएंगे. एंड सिमिलरली आप जब उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 120 रुपीज नहीं होंगे. 120 की जगह आपके पास 125 होंगे, 130 होंगे. एंड नेक्स्ट ईयर when you do the same exercise even with the same investment every month, वो आपके पास 125 plus 1 to 125 by the end of second year you will be ending up somewhere around 240. फिर जो कंपाउंडिंग है वो 240 प्लस आपने जो नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट किया होगा वो. तो इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, डेफिनेटली इट इज एक्चुअली बाय आपके गोल को अचीव करने में जितनी बड़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे फायदा होगा. But everybody have a limited pool ना. Even a billionaire could not invest a billion in the very first day.
आप स्मॉल चंक से स्टार्ट करें, एंड इट एक्चुअली जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है ना, वो अब आप फॉर एग्जांपल आप आज 100,000 इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? अगर मैं आज 100,000 इन्वेस्ट करूँ और मेरी सुपर एनुएशन जो कि अभी समवेयर अराउंड 25 ईयर्स डाउन द लाइन है, तो वो उसका इम्पैक्ट, और अगर आप अगर फॉर 25 ईयर्स के हैं, तो दैट इज लाइक 35 ईयर डाउन द लाइन एनुएशन। तो आपका इम्पैक्ट 10 ईयर्स का जो कंपाउंडिंग होगा ना, ज़्यादा होगा, और वो 10 ईयर्स बेसिकली जो मेरे आज स्टार्ट होंगे, वो 10 ईयर की कंपाउंडिंग लेके आएंगे 100,000। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो प्रैक्टिकली अगर फॉर एग्जांपल हम्म। मेरा 100,000 विल रीच समवेयर अराउंड 1 करोड़ बाय द एंड ऑफ 60 इयर्स, आपका जो 10 इयर्स पहले है ना, उसका इतना इफेक्ट होगा कि वो शायद 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ या 2.5 करोड़ बन जाए। इतना मतलब मैक्सिमम इतना इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब यानी मेरा एवरी डे रिटर्न काउंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई बढ़ जाएगा अगर मैं जल्दी शुरू करूँ। यस, आरओआई बढ़ जाएगा। तो इसलिए एज ओके। अर्ली एज यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इट रियली मैटर्स। मतलब ये अगर कोई ये कहे कि यार आज मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 मिलियन पड़े हुए हैं, एंड आई विल इन्वेस्ट इट आफ्टर लाइक आई हैव 5 मिलियन इन माय पॉकेट, तो ही और शी इज मेकिंग अ मिस्टेक। He or she should invest it right now so that the compounding starts, and by the end of जब भी उसके पास पैसे आए, he or she can invest that into the instrument so that compounding इंक्रीज होती रहे। सो आप सबको जिन्होंने इन्वेस्टमेंट का की जर्नी शुरू करनी है, और मतलब जिस जो भी इंटरेस्टेड है, वो कंपाउंडिंग को जरूर पढ़े। So my suggestion is as early as you start it, and हम्म। it's better. And even if you started with 1,000 rupees or 5,000, whatever like your pocket allows, so जितनी जल्दी करेंगे, it will actually help you achieve your financial goal early. इसी वजह से आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द, एक हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने लिखा हुआ था यू कैन ओपन एन अकाउंट बाय इन्वेस्टिंग एज मच एज 500 रुपीज़, कि आप Yes. इन्वेस्ट करें तो सही, यू जस्ट स्टार्ट Hmm. इन्वेस्टिंग, और चाहे आप वही फ्रीक्वेंसी के साथ करते रहें 500 अ मंथ, तो आई थिंक उससे भी यू कैन एक्चुअली एटलीस्ट गेट इनटू दिस। और एक दफ़ा जब आप जिस तरह बात हो रही थी कि यू हैव अ बिजी रूटीन, वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, वंस यू हैव योर लाइक समवट लेग इन द गेम, तो फिर आप उसके बारे में पढ़ना भी शुरू करेंगे एंड यू विल एक्चुअली गेट इनटू Hmm. द मार्केट, और उसके बारे में आपको पता चलना शुरू होगा। अच्छा मुनीब, Exactly, मेरा होता ये yeah. Hmm. एक और थोड़ा सा मसला मेरा भी है, मुझे जब तक कोई एक का चीज़ समझ ना आए ना, मैं वहाँ पे अटक जाता हूँ। तो एक इस तरह की टर्म यू यूज्ड, दैट वाज सुपर एनुएशन, व्हाट्स दैट? Superannuation is basically referred to the age, retiring age. By the laws of Government of Pakistan, we have 60 years being called as a ओके। superannuation when a person retires, and this term is being widely used in the mutual funds and the financial instrument that we use every day. एंड हाउएवर दे आर कंपनीज जो जिन्होंने सुपर एनुएशन डेट को 65 कर दिया है। बट फॉर एग्जांपल इफ यू किसी भी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे आप, चाहे म्यूचुअल फंड हो, पेंशन फंड हो, उनमें सुपर एनुएशन इज स्टिल 60, so you consider it as 60 even though your organization allowed it for 65, right? So superannuation is 60 years for if you talk about the government papers or government rules and regulations, it's 60 years. सही। एक क्वेश्चन, आप एक चीज़ आपने लिखी कही थी तो वो मैंने नोट डाउन कर ली थी, उस वक्त नहीं पूछी। यू आर गिविंग अ वेरी ब्रिलियंट एनेक्डोट ऑन वन ऑफ योर कजिन्स, और उसका आप बता रहे थे। द क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू क्वांटिफाई योर गोल्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स? क्वांटिफाई किस तरह करें? अक्सर लोग आई गेस गोल्स बना लेते हैं, यू कैन इवन मेक स्मार्ट गोल्स, लेकिन उसमें भी हम अक्सर क्वांटिफाई नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी के सबूर, तुम पैसे तो कमा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में कितने पैसे कमाओगे, आई वुड बी लाइक स्टक। मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा देने के लिए, मैं कितना बताऊँ, 100 करोड़, 1000 करोड़? I अच्छा would ये have no idea. So if you've been through this, how do you set a हुँ। goal? इस for a year, चाहे आप किसी specific age के लिए रख लें, चाहे आप ये रख लें कि आप किसी intermittent goal तक रख लें कि by marriage, or by the time I have a house, मेरे पास इतना cash flow होना चाहिए, this should be my financial positioning. So if you've been in this, in my shoes, how did you tackle this specific situation? अच्छा, मैं I'll be giving you my example, right? When I started my इन्वेस्टिंग जर्नी ना, तो मुझे भी ये चीज़ नहीं थी। अब आई थिंक आई वुड बी लाइक आई विल बी ऑनेस्ट कि शायद ये मैंने चीज़ लास्ट 6-7 मंथ्स या एन ईयर, लेस देन एन ईयर में मैंने ये खुद भी चीज़ डिसाइड की कि वेयर आई वांट टू लैंड एज़ अ फाइनेंशियल एज़ माय मेरा जो फाइनेंशियल टारगेट है वो क्या होगा।
particularly we being engineers, you are an engineer, I am an engineer, we always talk about numbers कि मैं यार कर मतलब कहाँ Hmm. पहुँचना किधर है, ठीक है। तो ये जो टारगेट मैंने अपने लिए, या मैं मतलब if somebody ask me for advice, I would say कि यार नंबर बेस्ड टारगेट होना चाहिए कि यार इधर जाके ना दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू अचीव। आप डेफिनेटली समटाइम होता है, जैसे जिस तरह आप बहुत सारे टारगेट सेट करते हैं, कभी अचीव हो पाता है, कभी नहीं हो पाता, कभी डिलेड अचीव होता है, कभी अर्ली अचीव हो जाता है, एंड दैट्स अपॉन हाउ Hmm. अल्लाह शेप योर लाइफ आउट ऑफ इट। सो व्हाट यू कैन डू इज कि व्हाट आई डिड इज कि यार जब मैं एक मिड मैनेजमेंट पे आ गया हूँ, लाइक 10 years डाउन द लाइन इन द इंडस्ट्री, तो एक मेरी एक रीजनेबली फोरसाइट है कि यार ये मेरा एक्सेप्टेबल लाइफस्टाइल होगा, और इस लाइफस्टाइल के लिए दिस इज व्हाट आई रीड राइट नाउ, राइट। अब उस लाइफस्टाइल को अगर मैं मेंटेन करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि यार ये लाइफस्टाइल मैंने मेंटेन करना है, आई एम हैप्पी विद मेंटेनिंग दिस लाइफस्टाइल, तो आज के 20 साल बाद या 25 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा या जो मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की डेट है कि यार मैंने 40 years या 45 years या 50 years तक काम करना है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो अचीव हो जाए। तो मैं ये कि आज के जो मेरे पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर इट 200,000 रुपीज, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, लोगों को डिफरेंट टारगेट्स होंगे। 200,000 रुपीज अगर आज हम कंसिडर करते हैं, तो अगर इसको हम इन्फ्लेट करें टिल नेक्स्ट 20-25 years, जब मैं जो मेरा फाइनेंशियल टारगेट होगा कि मैं उस वक्त फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, तो ये 2 लाख रुपए उस वक्त तक कितने पैसे बन चुके होंगे, ठीक है। Hmm. समझ बात, ठीक फॉर है, एग्जाम्पल makes sense. लेट्स कंसिडर इट, वो ये 2 लाख उस वक्त 1 million होंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 million होंगे। ठीक है। उस 1 million कमाने के लिए मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे वो पेंशन फंड्स हों, चाहे वो इनकम जनरेटिंग सर्टिफिकेट्स हों, चाहे वो कोई आपकी टर्म बॉन्ड्स हों, मतलब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर इफ द टाइम अलाउ दैट। तो उन इंस्ट्रूमेंट से फॉर एग्जांपल मुझे मिला के 10 लाख रुपए तो आने ही आने चाहिए ना, ताकि मैं अपना लाइफस्टाइल आज से Hmm. 25 साल बाद मेंटेन कर सकूं। बट अगर आप उस टाइम पे ये सोचेंगे कि यार ये 10 लाख रुपए मैं एवरी मंथ में अपनी इन्वेस्टमेंट से निकालूं जो कमा रही है, और मैं उसको स्पेंड कर दूं, तो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ जो है ना वहां रुक जाएगी, क्योंकि वो 10 लाख रुपीज इज द ग्रोथ एवरी मंथ दैट योर इन्वेस्टमेंट इज डूइंग। सो आपने ये करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपने अपना टारगेट सेट करना है कि यार चलो अगर मैंने 1 million निकाल लिया आफ्टर 40 years या 50 years, जब मैंने अपनी रिटायरमेंट एज रखी है, उससे ऊपर लाइक फॉर एग्जाम्पल आप 10 लाख आपकी रिक्वायरमेंट है, 15 लाख आपका आपकी इन्वेस्टमेंट को कमाना चाहिए, ताकि वो 5 लाख जो है ना वो अगेन कंपाउंडिंग में जाना शुरू हो जाए, आपकी जो नेट वर्थ है ना, नेट इन्वेस्टमेंट है, वो डिफ्लेट ना हो। इफ यू ट्राई टू Hmm. अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं समझ कि रहा हूँ, आप एक आपने, बफर अपनी इन्वेस्टमेंट्स में भी रख रहे हैं। हाँ, बफर रखना पड़ता है इसलिए क्योंकि वरना अगर आप वो अमाउंट निकालते रहेंगे ना, तो आपकी जो कंपाउंडिंग है ना वो रुक जाएगी। फिर आने वाले फॉर एग्जाम्पल आप 40 पे आपने रिटायर हो गए, और आपने लाइक यू स्टार्ट समथिंग एल्स व्हाट योर हार्ट सेज क्या मैंने ये करना है, और आपने वो जो आपका कॉर्प्स है ना उससे पैसे निकालना शुरू कर दिए, 10 10 लाख हर महीने आ रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं उसे। तो आप आगे आने वाले सालों की जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे बीट करेंगे, आने वाले सालों में जो आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, उसको कैसे मेंटेन करेंगे। सो आपने वो बफर रखना है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ ही रहे, जो आपका रिटर्न है ना वो एवरी ईयर वो इंक्रीज होता रहे, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट करते करते अपनी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान। And I think for the ease of the people, there's a very good website as well, बहुत सारी हैं, बल्कि sarmaya.pk है वो, और भी different websites available हैं जो कि that really helps you to calculate that target। तो उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, that you we all like, आप जैसे अब इस सेटअप में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की डोमेन में आएंगे, तो यू कैन ऑलवेज डिवाइड कि यार ये अभी इतने पैसे इन्वेस्ट करूँ, हर महीने इतने बढ़ाऊँ या हर ईयरली इतने बढ़ाऊँ, तो मैं यहाँ तक इतनी इन्वेस्टमेंट पहुँचा दूंगा। और ये इन्वेस्टमेंट ऑन एवरेज ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में 10 से 8% ऑन जो दुनिया का स्टैंडर्ड है वो ग्रो कर रहती है। तो वो ये ग्रो करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो वो यू ऑल पीपल कैन इजीली कैलकुलेट दैट। ठीक है। आई रेड समथिंग बिटवीन द लाइंस एज वेल, वो ये मैं समझाऊँ कि चाहे
इनिशियली अगर आप ओवरली एक्साइटेड होकर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, बट यू रियलाइज कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके एक्सपेंसेस से भी ज़्यादा मतलब हो रही है, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट्स में कट डाउन करना पड़ा अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो दैट इज़ एक्चुअली दैट डजंट वर्क फॉर यू, क्योंकि आपने फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट की हुई होगी अगर उसमें से चीज़ें निकालना शुरू कर दी, तो वो तो आपके हम्म कंपाउंडिंग इफेक्ट ही पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट वो इन्वेस्ट करें जो कि फिर आपको फॉर श्योर हो कि मैं उसको टैप इन नहीं करूंगा। यार आई थिंक दैट इज लाइक डिसिप्लिन दैट यू लाइक ये बड़ा अच्छा मैं अपने सवाल किया। मोस्ट ऑफ द पीपल जो फाइनेंशियल गुरुज हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, उसने भी यही लिखा, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, यू नीड टू डिसाइड इन द वेरी फर्स्ट डे कि यार ये मैंने एवरी मंथ आई नीड टू टेक दिस अमाउंट ऑफ मनी एंड पुट इट इनटू द टू इन एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर आपको आपको उसमें लाइक वन ऑफ सीन हो सकता है कि अगर आपको पैसों की जरूरत पड़े आप निकाल लें, बट यू नीड टू रिप्लेनिश एज अर्ली एज पॉसिबल। ये डेफिनेटली लाइफ है, इट इट हैज इट्स ओन अनसर्टेनिटीज। आपको जरूरत पड़ जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये कहता है कि इट्स नॉट वाइज टू टेक आउट दैट मनी एट लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस आप मैनेज कर लेंगे। बट येस, अगर कोई ऐसी अनफोर्सीन इशू आ जाता है, जैसे लोगों को मेडिकल इश्यूज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पीपल लोग ऑफ फॉर टेकिंग आउट द मनी, और होता भी यही है कि आपकी वो रिजर्व कॉर्प्स काम करता है, और आप उससे यूज कर सकते हैं मनी, बट यू नीड टू रिप्लेनिश इट अगर आपने फाइनेंशियल गोल हिट करना है। बट द जो आपने जो सवाल पूछा कि उसमें डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, यस डिसिप्लिन इज वेरी मच रिक्वायर्ड इवन नाउ। मतलब मैं अपनी बात करूं तो the day I get the my salary in my account, I divide it to the percentages according to which I have planned it for last many years। वो percentages के हिसाब से मैं और फर्स्ट डे पे डिवाइड करता हूँ, और इसी से एक बात निकलती है, जीरो पी बजटिंग की बात करते हैं, जीरो पैसा बजटिंग की बात करते हैं लोग, कि आपकी इफ दिस इज द अमाउंट ऑफ द सैलरी दैट यू गेट, आपने उसको डिफरेंट पीसेस में डिवाइड करना है इन इन अ वे कि आपके पास आप इतनी इतनी अच्छी उसको डिवाइड करें कि आपके पास नेक्स्ट मंथ तक जीरो बजट, जीरो रुपीज रह जाएं, और आप सब कुछ जो है ना वो परफेक्टली प्लान करें कि ये पैसे मेरे इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, ये पैसे मेरी नीड्स के हैं, ये मेरी वांट्स के हैं, ये मेरी नेसेसिटीज के हैं। तो ये लोग यूजुअली 50-30-20 जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे, यूजुअली उस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बट देयर ऑलवेज अ डिवीजन, हर किसी के हालात और वाकयात मुख्तलिफ होते हैं, किसी के एक्सपेंसेस कम है, किसी के ज़्यादा हैं, कोई अपने घर में रहता है, कोई रेंट पे करता है, तो उस हिसाब से चीज़ें डिफर हो जाती हैं। लेकिन मेक श्योर कि वंस यू हैव डिसाइडेड दैट दोज परसेंटेजेस जो आपके लिए वर्क करती हैं, यू स्टिक टू देम and you make a consistent investment in the instruments. That is more required over here। या मुनीब, इस पे 30-30-20 इसका जिक्र हुआ तो मुझे उससे एक चीज़ याद आई जो कि मैंने खुद भी की थी। वो ये कि इवन दो वी प्लान फॉर एवरीथिंग, बट यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन। तो मैंने एक चीज़ बड़ी अर्ली ऑन अपने करियर में की थी, और मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, ये था कि आई चाहे इन्वेस्टमेंट्स मैंने रखी हुई हो, कुछ भी किया हुआ, इवन आई एम नॉट वेरी मच फैन ऑफ हैविंग लिक्विड कैश इन माई अकाउंट, लेकिन मैंने कंटिजेंसी फंड रखा हुआ है, हम्म। जो कि मैं उसको ओके। ना, लाइक इट्स सम मनी, जो कि यू कैन से 2 months पे और समथिंग, जो कि आई हैव इन माई अकाउंट इन केस ऑफ एनी मेजर कैलामिटी, या कोई भी चीज़ आ जाए जो कि एब्सोल्युटली अनफोर्सीन हो। लाइक वी कैन, हम्म जैसे आपने कहा ना जीरो पी बजटिंग, दैट मीन्स कि आपने हर चीज़ के लिए अकाउंट किया हुआ है। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई फैमिली इमरजेंसी हो गई, यू हैव टू गिव समबडी अ लोन, उसके लिए भी आपने अकाउंट कर लिया। But even then, I have a contingency fund, and I've found these in many of the gurus, even those that I follow online as well. ज़्यादा नहीं है, एक दो ही हैं, वो भी यही सजेस्ट करते हैं that you should have a contingency fund, so that you do not have any sort of liability जब आपको कोई ना कोई चीज़ की जरूरत पड़े, you have some हम्म cash in your hand, because फायदा नहीं है अगर आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टेड हो, कोई भी एसेट्स आपने लिए हो, बट यू डू नॉट हैव कैश टू स्पेंड व्हेन यू नीड इट, फिर तो आपको लगता है यू आर लाइक हम्म। कैश ट्रैप्ड। अच्छा, मैं I have a very different and orthodox opinion on it, and I'll share you what I really feel and how I manage this risk। अच्छा, होता प्लीज ये डू। है कि आई थिंक हाँ, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत सारे तरीके ना, लाइक लेट्स टॉक अबाउट दैट। इन्वेस्टमेंट्स की ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? वन इज रियल स्टेट, जो पाकिस्तान में बड़ा ग्लोरियस किया जाता है कि यार रियल स्टेट इज द वे टू गेट रिच।
I'm really against into it, and whenever I invested, I got a loss. I'll be frank. Like अब even तो आजकल के हालात तो है ही हैं, लेकिन जब अच्छे हालात भी थे तब भी मैंने ठीक-ठाक लॉस लिया और मुझे कभी फायदा नहीं हुआ। तो आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो नहीं करता, और उसकी वजह जो आपके ही क्वेश्चन में लाया करती है कि क्या, लेट्स टॉक अबाउट रियल एस्टेट में आपने एक जमीन ली, एक घर लिया, एक 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 पोर्शन लिया, एक स्टूडियो लिया, व्हाटएवर द थिंग दैट यू बॉट, आपने फॉर एग्जांपल वो 1 मिलियन का लिया, सो 1 मिलियन इज वेरी लो वन, 2 मिलियन का लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है? आज आपने ले लिया 2 हम्म। मिलियन का, आप कहते हैं यार दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू एक्चुअली ग्रो इन, एंड आई विल सेल इट आफ्टर 5 इयर्स, 10 ईयर डाउन द लाइन, या मैं इसमें खुद रहूंगा आफ्टर 20 इयर्स, कि ग्रो भी करता रहेगा, मुझे रेंट भी देता रहेगा। अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई और आपने उसको बेचना पड़ गया। वंस यू गो इनटू द मार्केट ना, आपको बेचने में इतना टाइम लगेगा, इतना स्ट्रगल होगा, आप जाएँगे, प्रॉपर्टी एजेंट ढूँढेंगे, वो उसके लिए बायर ढूँढेगा, बायर आने के बाद में वो कहेगा मुझे 2 महीने चाहिए पेमेंट के लिए, मैं फिर वो आपको कई चक्कर लगाने पड़ेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में फॉर गेटिंग दैट प्रॉपर्टी, सो मच हैसल इनटू इट। तो मुझे हमेशा प्रॉपर्टी में लोग लेते हैं, लेकिन जो लोग आज ये सोचते हैं कि मैंने 50 साल, 30 साल तक कुछ नहीं बेचना है, दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू ग्रो, जिसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, प्रॉपर्टी ले लें। सो तो दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि ये वो सेक्टर है उन लोगों के लिए जिन्हों के लिए ये चीज मैटर नहीं करती कि ये चीज मुझे अगले 20 साल के लिए नहीं चाहिए, वो रियल एस्टेट में चले जाएं। मैं तो ठीक है। सीधी बात कहूंगा, मिडिल क्लास के लिए यानी रियल स्टेट इज नॉट मच ऑफ एन ऑप्शन अगर उसको हम्म। लिक्विडिटी चाहिए हो साथ में, जो कि मुझे तो यस। चाहिए होती है कि यार इन्वेस्टमेंट मैं ऑप्शन जो भी उसमें मैं हम्म। लिक्विड करता अच्छा हूँ सबूर, ये उसको नेचर पे डिपेंड कर, ये जब नेचर भी पे मुझे ज्यादा डिपेंड करता। जरूरत पड़े। हाँ नहीं, ये नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे अभी उसमें वी प्रॉपर्टी में। बीन इन टच। सॉरी, आपकी आवाज कट रही, सॉरी, यू आर सेइंग या समथिंग। प्लीज गो अहेड, गो अहेड। हाँ ये नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे इफ हाँ। आई टॉक अबाउट माय नेचर, आई वांट दिस लिक्विडिटी एट ऑल टाइम्स। मेरी कोई इन्वेस्टमेंट मुझे ऐसी नहीं चाहिए जो लिक्विड ना हो। दिस इज माय पर्सनल वे ऑफ फाइनेंशियली प्लानिंग थिंग्स। इसीलिए शायद मुझे प्रॉपर्टी इज, आई डोंट डू प्रॉपर्टीज एट एनी कॉस्ट। खैर अब बात करते हैं जो बात वहां से शुरू हुई थी कि आप रिजर्व फंड रखें। आप रिजर्व फंड रखते हैं अपने अकाउंट में। लेट्स से यू बिन इन अ वेरी गुड पोजीशन, इंशाल्लाह यू विल बी, बट एंड यू हैव अ रिजर्व फंड फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन आपका अकाउंट में पड़ा होगा, तो 1 मिलियन अगर आपने करंट अकाउंट में रखा है और वो 1 साल के लिए रखते हैं, तो 1 साल का मतलब ये है, जो कि यूजली अल्लाह ना करे कभी किसी को मेडिकल इमरजेंसी पड़े, लेकिन लेट्स सी 1 साल, 2 साल की बात करते हैं, तो 2 साल का मतलब 24 मंथ्स। 24 मंथ्स मीन्स कि आपने वो करंट अकाउंट में रखा हुआ है, और करंट अकाउंट में आपने उस पर अगर आपने जीरो प्रॉफिट किया है, तो आपका पैसा एक्चुअली 20% से डिफ्लेट हो गया है। ठीक है, मेक सेंस? सबूर, मेक सेंस? कैन मेक यू हियर मी? सेंस। बिल्कुल। हाँ। सो ऑल्टरनेट क्या मेक है? सेंस, या आप मेक बिल्कुल, सेंस। हाँ, इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका ऑल्टरनेट ये है कि आप इजी ऑल्टरनेट कि आप इस्लामिक सेविंग खोल लें, या इफ यू गो टूवर्ड्स कन्वेंशनल सेविंग खोल लें। उन सेविंग अकाउंट्स में आपको 5-6% रिटर्न पर मंथ मिलता रहता है। सो योर रिजर्व फंड इज एक्चुअली ग्रोइंग, एक्चुअली नॉट बीटिंग द इन्फ्लेशन बट एक्चुअली ग्रोइंग। ठीक है। सो व्हेन, लाइक मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि आप रात को सो रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपके जो पैसे हैं वो कुछ ना कुछ कम अमाउंट में ग्रो कर रहे हैं, अगर आप अपने लिक्विड कैश, वेरी लिक्विड कैश अपने अकाउंट में रखते हैं। हम्म। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उसको डेफ फंड या इनकम फंड्स में, जो कि लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें डाल दें। अब आप कहेंगे कि यार उसमें तो लिक्विड नहीं है। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आजकल के जो आजकल म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, वो आपको विद इन एन आवर आपके अकाउंट में, अगर आप इंस्टेंट कैश की ऑप्शन होती है 30%, 50%, डिपेंड, डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट ऑफर करते हैं, यू कैन गेट दैट मनी इन योर अकाउंट विद इन एन आवर। ठीक है। तो इट्स दैट हम्म। इंस्टेंट। और अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो 100% चाहिए, तो 100% की भी ऑप्शन होती है। 100% ऑप्शन इस तरह होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेक अ ट्रांजेक्शन बिफोर 12 o'clock इन द नाइट, इनका काउंटर चलता है सुबह 9:30 बजे। तो ठीक 9:30, 10 बजे के करीब जो आपने जो रिडम्पशन डाली होगी ना म्यूचुअल फंड में, जो लो रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं, उनसे आपके अकाउंट में लैंड कर जाएगी अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। तो
इट्स नॉट दैट वेरी लिक्विड कि यार रात को आपको 12 बजे जाके आपके अकाउंट में पैसे पड़े होंगे, बट इट हैज दैट लिक्विडिटी ऑप्शन। पहले तो हाफ, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 5 लाख रुपए तो आप इंस्टेंटली अपने अकाउंट में 1 घंटे के अंदर ले सकते हैं। पहली चीज होगी। सेकंड इज, आपको पूरा अमाउंट चाहिए वो सुबह 9 बजे आ जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज, देयर आर म्यूचुअल फंड जो कि आप डेबिट कार्ड देते हैं, you know about that। एनबीपी के Yes. फंड्स की बात करूं तो वो Yes. डेबिट कार्ड देते हैं आपको। यू कैन गो इनटू द एटीएम एंड यू कैन पुल आउट द मनी, या इफ यू गो टू एन हॉस्पिटल यू कैन यूज दैट कार्ड। थर्ड फोर्थ ऑप्शन ये है कि यू इफ यू आर ऑन अ सैलरी और यू आर डूइंग सम बिजनेस, आप क्रेडिट कार्ड ले लें। दे क्रेडिट, अगर जो लोग इस्लामिक देखते हैं, दे आर इस्लामिक क्रेडिट कार्ड एज वेल इन द मार्केट। ठीक है, दे हैव गुड गुड नंबर। जो आपकी डिपेंड अपॉन आपकी, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको एक अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट आपको मिल जाती है, जो आपके जो ये जो मेडिकल का आपने लिए रखा हुआ है उसके अमाउंट से के नियर अबाउट ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 सैलरीज रखी है तो 2 लाख का आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट उससे ऊपर ही मिलेगी आपको। ठीक है, इफ यू आर, जो भी आपकी एक अर्निंग है उसके 3-4 टाइम मिल जाती है। तो आप क्रेडिट कार्ड लेने, अगर आपको बहुत सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, उन क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट क्या होती है, लाइक डिपेंडिंग ऑन 4-5 लाख तो इजीली होती है। ठीक है, और उसकी एनुअल फी अगर आपको भरनी पड़ती है 10,000 5,000, वैसे वो भी वेव ऑफ हो जाती है अगर ऑन सर्टेन स्पेंडिंग। तो आपके पास एक लिक्विड कैश ऑलरेडी इन हैंड है। ठीक है, आप किसी भी हॉस्पिटल जाने, किसी भी इमरजेंसी में जाने, यू कैन स्वाइप द कार्ड एंड यू कैन यूज दैट। सो आपके पास Hmm. ऑप्शंस हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि यार आपको मेडिकल की अमाउंट में अपने करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में पैसे रखने चाहिए। आप उस सब पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें, एंड अल्लाह ना करे जब आपको जरूरत पड़े तो यूज द क्रेडिट कार्ड, यूज द instant cash option or the instant redemption option which is available in all the mutual funds। तो ये चीज आई थिंक, इसको इस तरह देखें, कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट अगर अकाउंट में पड़ी तो जाया हो रही है वो। Hmm. ठीक है। तो पुट इट दैट वे। मेक सेंस। हम्म मैंने अभी रिसेंटली बल्कि एनबीपी फंड्स का देखा भी था। दे हैव अ वेरी गुड सर्विस इज वेल, और वो डेबिट कार्ड वाली चीज़ एक्चुअली रियल है कि यू कैन एक्चुअली, उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पता चलता कि आप अपने बैंक का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप एनबीपी फंड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो इंस्टेंटली आपकी हम्म पेमेंट हो जाती है। और अगर कोई ऐसी फीस है। काट भी लेते हैं तो कितनी दफा आप मतलब जिंदगी में यूज करेंगे ना, 1 2 दफा 3 दफा 4 दफा को थोड़ी बहुत फीस होगी। मैंने उसका ऐसा अकाउंट नहीं बनाया हुआ, लेकिन आई नो दैट सर्विस कि ये चीज है उनके पास अवेलेबल। थोड़ी बहुत शायद सर्विस कॉस्ट लें, डेफिनेटली वो लेनी भी उन्हें चाहिए कि उनके, फॉर एग्जाम्पल आपने उनसे पैसे एकदम से विड्रॉ किए हैं, उन्होंने वो किसी टी बिल्स में, किसी सुकूक्स में इन्वेस्ट किए हुए होंगे जो कि वो आपको इंस्टेंटली दे रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत सर्विस फीस तो काटेंगे। लेकिन दैट एक्चुअली सॉल्व्स योर रिस्क प्रॉब्लम ना, कि आपके पैसे ग्रो कर रहे हैं और आपको रिस्क नहीं है, आप कभी भी अपने फंड्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। एक और चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे थे, वो ये है कि देखिए देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ एक तो इसका ही होता है दैट यू परहैप्स नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, और मेरे ख्याल से उसका सबसे ज़्यादा ताल्लुक इसी के साथ होता है दैट देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग मनी इन द मार्केट इज वेल। हम्म चाहे आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, लॉस का फैक्टर होता है, और ये होता है जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे आपकी लॉस शेयरिंग होनी भी चाहिए based on principles. So how did you cope with that, and how much of that fear is real? और उसके लिए अगर कोई कह रहा है कि मैं ready नहीं हूँ, तो how to be better prepared for it? How, जैसे just like the reason why this session or podcast, whatever this has turned into, it works is because you have some sort of a system that you run हम्म against. तो how हम्म do you calculate your risk? एक calculated risk होना चाहिए। For example, अगर मैं 100 भी खर्च कर रहा हूँ, 1000 रुपये भी खर्च कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे लिए ये है कि 1000 रुपये ही नहीं खत्म हो जाए। मुझे पता होगा इसमें से 200 मैं लूज कर सकता हूँ, उसका स्टॉप लॉस है, उसके आगे मेरा बाकी लिक्विड कैश आई कैन गेट ऑन द इन्वेस्टमेंट। सो फर्स्टली द क्वेश्चन, उसको मैं रिस्ट्रक्चर करता हूँ। एक ये कि हाउ व्हाट एक्चुअली इज फियर ऑफ लूजिंग मनी इन द इन्वेस्टमेंट्स, हाउ मच रियल इज इट, एंड हाउ टू कोप विद इट। और उसके लिए एक सिस्टम अगर मैं खुद अपने लिए बिल्ड करना चाहूँ, या जो हमें सुन रहे हैं वो बिल्ड करना चाहें, तो what advice would you give them? अच्छा, कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, fear of losing is actually real at any point of time, at any point of stage in, for at least me, and जितने लोगों से मैंने बात की है, लोगों से इंटरेक्ट किया है, चाहे वो बिलियनियर हो, मिलियनियर हो, या दे जस्ट स्टार्टेड देयर इन्वेस्टिंग करियर, fear of losing तो सबको होता है। And if you have your hard earned money investing, you're investing somewhere hard earned money,
तो आपको एक डेफिनेटली रिस्क तो होगा ना कि यार ये, और हर इन्वेस्टमेंट के साथ होता है दुनिया में, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट लेने, नथिंग इज रिस्क फ्री, ठीक है। सो वो आपको लाइक मैं आपको बड़ा कैंडिडली एंड ऑनेस्टली कहूंगा, ये फियर आपको खुद ओवरकम करना है बाय टेकिंग द राइट स्टेप एंड बाय टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। अनलेस एंड अनटिल आप इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, आपको ये फियर से आप नहीं निकल सकते। एंड आई हैड दिस फियर फॉर मेनी इयर्स, 2 3 years 4 years, एंड आई एक्चुअली गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, आपको ये यकीन होना चाहिए कि यार 20% इसमें लॉस होने के चांसेस हैं, और समटाइम 50% भी होगा, समटाइम 100% भी होगा। बट आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। देयर आर इन्वेस्टमेंट जो कि आपने भी लोगों से सुनी होंगी, बहुत मार्केट में देखी होंगी, बड़ी एग्जांपल है जिसने लोगों ने विद इन ईयर, विद इन मंथ्स 50% भी गेन किया, और ऐसा भी है जहाँ 50% लूज भी किया। तो इट्स समथिंग, ये होता है कि आपने, फॉर एग्जांपल आप, हम लेट्स टॉक अबाउट द नोटोरियस शेयर मार्केट। आई थिंक दैट्स द पीपल कैन रिलेट इट। आप अपनी हम्म। सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक कंपनी में तो नहीं करेंगे ना यार, या यू शुड बी दैट नाइव कि यार मैं आई वांट टू ले ऑल माय एग्स इन वन बास्केट। यू डोंट डू दैट। वी ऑल आर लाइक अर्निंग एंड हैव दैट फाइनेंशियल सेंस कि आप एक जगह नहीं इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल दे आर 10 कंपनीज, 10 बिग कंपनीज, मैंने 10 बिग कंपनीज में इन्वेस्ट किया, उनमें 3 कंपनियां में मुझे नुकसान हो गया, तो यू बेयर दैट लॉस। और आप बाकी जो कंपनीज में प्रॉफिट हुआ उसको चेरिश करें। पर अगर आपको ओवरऑल लॉस नहीं हुआ तो यू आर स्टिल इन प्रॉफिट। हाँ, नफे में नुकसान जरूर हुआ है, बट प्रैक्टिकली लॉस नहीं हुआ। तो अगर आप ब्लू चिप्स में, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा सा होल्ड टाइम रखते हैं, तो आपको अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हो जाता है। बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि यार उनके टेक्निकल्स क्या हैं, उनके फंडामेंटल्स क्या हैं, जिस स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हैं उस पे आपको सिर्फ ये हम्म। पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी, आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें। जो लोग ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं ना कि यार ये मार्केट में न्यूज आ रही है मैं यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, वो चीज़ हमेशा लॉस की तरफ लेके जाती है। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करें, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे वो पेंशन फंड्स हों, व्हाटएवर इंस्ट्रूमेंट दैट यू वांट टू डू, उसकी थोड़ी-सी नॉलेज आप ले लें और रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट विदाउट रिस्क नहीं होती, और कहीं भी आपको अपनी अपनी वेल्थ ग्रो करने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ता है। और एक एक्सेप्टेबल रिस्क के साथ आप एंटर हो जिस इन्वेस्टमेंट में भी आप करें, और ये ज़रूर चांसेस हैं, और इनिशियली होता भी है, मतलब इवन मेरे साथ होता है, मैं आपको भी बताऊं, मतलब मैं आई 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 टेक एन एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ रिस्क, बट यस आई डू फेस लॉसेस इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, और कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी 50% भी हो जाते हैं। बट यू 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 आपको एज ए इन्वेस्टर ये सोचना चाहिए, एटलीस्ट मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत चीज़ की, क्या चीज़ मिस की जो मुझे ये लॉस आया, क्या अपॉर्चुनिटी मैंने मिस की जो कि मैंने आइंदा मिस नहीं करनी। इसमें लोग असल में ज़्यादातर, जो मैंने अपने साथ भी होते हुए देखा, कि इफ़ यू गेट ग्रीडी ना, कि यार अभी आज मुझे ना 100,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो लेट्स सी कि यार हो सकता है कल ये आई विल गेट समथिंग हम्म। 110, 120, उधर ही आप मार खाते हैं। ये आपको ये एक, अगर ये तो फिर आपका एक वो टारगेट नेक्स्ट मीट हो स्टेप रहा है कि ऑफ यार फियर है ना। ये तो फिर फोमो पे आ जाते हैं नहीं, आप। दिस इज समथिंग, हाँ, यस, तो आपको अगर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, यू टेक दैट मनी आउट एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स। हम्म। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टिंग। उसमें ये है कि यार एक, फॉर एग्जांपल, एक जगह मुझे 10% प्रॉफिट हो रहा है एंड आई एम डूइंग गुड, बट दूसरी कंपनी जो कि, या दूसरी दूसरी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, वहां मुझे नजर आ रहा है कि यार मुझे 15% प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं 10% लेके 15% में इन्वेस्ट कर दूंगा। या इसकी डाउन साइड या डिफरेंट साइड देखें, यहाँ अभी मुझे 2% लॉस हो रहा है, 3% लॉस हो रहा है मेरे कैपिटल पे, और दूसरी कंपनी में मुझे लग रहा है, दूसरी इंस्ट्रूमेंट में लग रहा है कि नियर फ्यूचर में मुझे वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा, उसके मुझे जो मैंने उसके पीछे बैकग्राउंड वर्किंग की है वो ठीक है, और मुझे लगता है कि प्रॉफिट हो जाएगा, तो आई टेक दैट लॉस एंड पुट इट समवेयर एल्स। समझ नहीं बात आप मेरी, कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 मिलियन मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें मुझे 50,000 लॉस हो रहा है, 950, नहीं, हम्म। 9.5 लाख रुपए मैंने निकाले, 50,000 को लॉस लिया और दूसरी इन्वेस्टमेंट कर दी। और हो सकता, मेरी वर्किंग होगी कि यार इस इन्वेस्टमेंट से मुझे जल्दी लॉस रिकवरी हो जाएगी, तो मैं इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट बेस्ट इन्वेस्टिंग, कि जहां आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लग रहा हो ना वहां पे इन्वेस्ट करें, इवन सब कुछ जगह आपको लॉस भी लेना पड़ेगा, आप लॉस ले निकल जाए वहां से। तो ये जब आप बिजनेस करते हैं, जब इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ये फियर होता है, लेकिन इसको आपको ओवरकम करना है, और अगर आप ये ओवरकम नहीं करेंगे तो फिर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, सो यानी एक तो पहली चीज, यू नीड टू नो कि आपका एक्सेप्टेबल रिस्क कितना है। यू यस। हैव टू डू योर होमवर्क, उस इंडस्ट्री जिसमें भी आप इन्वेस्ट करें उसके बारे में पता, यू शुड नो द टेक्निकल्स एज वेल एज द फंडामेंटल्स।
उसके साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स यानी यू शुड कीप देम इन सर्कुलेशन. You हम्म should not stick to one instrument itself या एक ही इन्वेस्टमेंट भी नहीं रखना based on your homework. अगर कोई और better opportunity आ रही है तो rather than to just keep praying for one investment to grow, आप उस पे एग्जिट करके जो है ना नई इन्वेस्टमेंट कर लें. एक और चीज़ यस आपने जिक्र किया उसका ये है जो मैंने नोट किया वो ये you should have diversification in your investment portfolio. Let's dive into हम्म this. कि how much of a diversification you should have to grow and how much of it you should concentrate. For example, there are different school of thoughts out there. Some say that you cannot become a millionaire or a billionaire by getting into hundreds of investments and hundreds of instruments. Rather, focus your investment towards one thing. Make a bet. For example, एक बता है उसकी बड़ी एक मशहूर कहानी है that guy has been investing around $100 every month for the past I don't know 15 years into Bitcoin, and then suddenly Bitcoin shot up to 100K. हम्म Wasn't sudden, but it's a like social media investment meme जो कि इस तरह की इस स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करती है. एंड हम्म द अदर इज कि फॉर द सेफ गोइंग इन्वेस्टर जिसने अपने लॉसेस और रिस्क इस तरह के मैनेज करने हैं कि हम्म both require discipline. बेस सेम है बट द स्कूल ऑफ थॉट डाइवर्जेस इन द वे कि डाइवर्सिफिकेशन एक ने एक जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई और कंसिस्टेंटली बिल्डअप किया उसको ओवर मैनी ईयर्स और कंपाउंडिंग एक ही जगह से एक्सपेक्ट की हुई है. वर्सेस द अदर स्कूल ऑफ थॉट सेज कि आप अपनी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको ना सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट या एक शेयर मार्केट में आपने डिफरेंट कंपनीज में डिवाइड की हुई है बल्कि डिफरेंट मार्केट्स में आपने रखी हुई हो. यू शुड हैव हम्म सम अमाउंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स इन लेट्स से क्रिप्टो, in real estate, in savings account, in mutual funds, in the share market as well. तो इसके ऊपर what chain of thought do you follow and any recommendations कि अगर कोई इसको शुरू कर रहा है जिसके पास हम्म पहले ही एक बहुत ही अंडरस्टैंड कि हम अभी भी 20s की बात कर रहे हैं वेयर दी इन्वेस्टमेंट कैपिटल में भी एज लो एज लेट्स से 10,000 अ मंथ, ये फिर भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, लेट्स से 10,000 हम्म अ मंथ, उस डाइवर्सिफिकेशन कितनी होनी चाहिए उस हिसाब से थोड़ा सा बताएं. यार लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड्स या जो एक लोगों ने एक्सपीरियंस किया है फाइनेंशियल मार्केट्स में उसकी बात करते हैं. यूजुअली क्रिप्टोज आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट टूल on a general basis. Crypto or forex market are so volatile. It's for swing trade, it's for intraday trading. You go in and you go out, you make your money, or either you lose your money. It's something. Yes, there was a time and there is still a time. हो सकता है कुछ किसी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों एंड लोग करते हैं 6-8 महीने 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट यूजली मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा शायद मेरी अपनी नॉलेज भी शायद उस जुमरे में कम है या उस एस्पेक्ट में कम है कि क्रिप्टो की टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं. टेक्निकल तो इट्स एग्जैक्टली द सेम, बट फंडामेंटली वो चीज़ें कैसी हैं, क्या हैं, जो लोग उस मार्केट में कई सालों से हैं उनको शायद बेहतर पता होगा. लेकिन इट्स अ वेरी वोलेटाइल मार्केट. फॉर स्टार्टर्स आई वुड नॉट से, एटलीस्ट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उस मार्केट में जाएं. पहले आपकी जो बाकी फाइनेंशियल टूल्स हैं जो कि आपको एक स्टेबल इनकम या स्टेबल एक ग्रोथ देते हैं, उनकी तरफ आप अपने आप को फोकस करें जिसमें बहुत बेतहाशा चीज़ें हैं. एक इंस्ट्रूमेंट है नहीं जिसमें टी बिल्स हैं. टी बिल्स गिव यू वेरी गुड रिटर्न विद लो टैक्सेशन एज वेल. म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन. अच्छा, म्यूचुअल फंड में आपको हर तरह का एक्सपोजर मिल जाता है. आपको फंड ऑफ फंड्स भी मिल जाएंगे. फंड ऑफ फंड आर बेसिकली अकोमोलेशन ऑफ डिफरेंट फंड्स. इक्विटी फंड मिल जाएगा, डेप फंड मिल जाएगा, इनकम फंड मिल जाएगा, शरिया कंप्लाइंट फंड मिल जाएंगे. सो आपको उधर एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा. आप उधर अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. अदर देन दैट, अगर आप यू थिंक योरसेल्फ यू गोइंग इनटू द स्टॉक मार्केट, यू कैन ऑलवेज ओपन एन अकाउंट एंड गो इनटू द स्टॉक मार्केट एज वेल. स्टॉक मार्केट में भी आपकी चीजें, फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर लेता हूँ, एबीसी शेयर. एबीसी शेयर कैन नॉट ड्रॉप more than 10% in a day. ये आपके पास कंट्रोल है. बट क्रिप्टो एंड अदर फॉरेक्स मार्केट आर 24/7. यू आर नॉट अवेक 24/7. और उनमें कोई कैपिंग नहीं होती. अगर एक चीज आज गिरती है वो 10%, 20%, 30%, 40% तक गिर सकती है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अनलेस अनटिल आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ प्रॉपर. तो अगर आप समझते हैं कि यू वेरी डिसिप्लिन, आपने स्टॉप लॉसेस अच्छे रखे हुए हैं, यू कैन मॉनिटर एवरी आवर, एवरी हाफ एन आवर, तो गो फॉर इट. जो मैं एक हैसल नहीं लेता, तो मैं यूजली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि थोड़ी सी जिनकी फंडामेंटल्स और टेक्निकल मुझे समझ आती हूँ, थोड़ा सेफ प्ले करते हो और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देती हूँ, मैं उनकी तरफ जाता हूँ.
यूजली मेरे लिए कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट रहा देन वोटालिटी। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपको एक शेयर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में की बात करते हैं, वो 2 2.5% 3% महीने में देता है। अगर आप क्रिप्टो या फॉरेक्स में देखें तो इट विल गिव यू दैट 2 3% इवन 4 5% इन आवर और इन अ मिनट एज वेल। देयर आर केसेस। सो इतनी वोलेटाइल मार्केट में मैं नो डाउट, नो एटलीस्ट डाउट, वेरी वेरी वोलेटाइल, हाँ ये तो हाँ इसके वेरी ऊपर कोई वोलेटाइल। डाउट नहीं है। It takes like seconds. Either you are flushed, either you are a millionaire. So it's matter of seconds. मेरे साथ खुद भी हुआ है। I do it for learning, but I don't do it for investment. So I would recommend the same what I am doing for myself as well. So it's very volatile, and with the busy schedules, with the jobs or the business that we have, जो हमारी audience है, I would not say कि अगर आपके पास ample time है, you consider yourself a trader in the future as your whole and soul earning portfolio, मतलब आपने सिर्फ ट्रेडिंग करके ही अर्निंग करनी है, then you might opt for crypto. That's lucrative अगर आप you develop that skill. But अगर if you आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, एसआईपी करनी है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो है वो स्टेबल मार्केट्स में, कंसिस्टेंट मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। फिर आपने दूसरी बात ये की थी डिफरेंट मार्केट्स की इन्वेस्टमेंट की ना। यस, इट ऑलवेज सेफ टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, बट एट व्हाट कॉस्ट ये आपको खुद डिसाइड करना है। देयर आर डिफरेंट मार्केट्स। सबसे बड़ी मार्केट जो है वो यूएस की है, फिर कुछ ऑस्ट्रेलिया की है, कनाडा की है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट मार्केट हैं। अगर यू हैव एक्सेस, पहली तो बात इशू ये होता है कि आपके पास वहाँ एक्सेस हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस तरह के टूल्स नहीं है। मैं अभी कुछ टूल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बट आई वुड नॉट नेम देम हियर कि मैंने खुद भी इतना उन पे इन्वेस्ट करके चेक नहीं किया। इशू आता है कि आप उन मार्केट्स को पहले अप्रोच कैसे करोगे, और क्या हम्म। जिन 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 ब्रोकर्स के साथ या जिन पार्टीज के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर चल रहे हो, क्या वो रेगुलेटेड हैं? अगर वो डिफॉल्ट कर जाती हैं तो एट विच प्लेटफॉर्म यू गोना प्ली। मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि हम्म। मैं पीएसएक्स या पीएमएक्स में इसलिए आई एम मोर इंटरेस्टेड कि सीडीसी बैठा हुआ है, मेरे शेयर्स या मेरी कोई चीज वहां से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि सीडीसी इज द गवर्निंग बॉडी। वो देख रही है सब ब्रोकर को भी, वो देख रही है मर्चेंटाइल को भी कि यार इस बंदे ने, उनका आपका एक पोर्टफोलियो होता है उनके पास, क्या इस बंदे ने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की हुई है और ये इस ब्रोकर के थ्रू की हुई है या ये सीटीसी अकाउंट में की हुई है। उनके पास एक पूरा पोर्टफोलियो था, एक पूरा रेगुलेटेड बॉडी है जो कि सारी चीजों को रेगुलेट कर रही है। बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल कोई आप, देयर लॉट ऑफ एप्स जो आप करते हैं, इवन क्रिप्टो की बात कर लेते हैं। क्रिप्टो में आपका वॉलेट फ्लश हो गया या somebody hacked your into your account, आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग। And one of my neighbors, I was talking to them. He told me that he has a very good investment in US. And unfortunately, I would not take the broker name. उन्होंने मुझे broker का नाम भी बताया था. And I was actually looking to open an account with that broker to actually invest. He told me that he is a US citizen. वो ये कहते हैं कि यार मेरे पैसे फ्लश हो गए, and ओ। I tried my level best कि यार मेरा अकाउंट हैक हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे दिस इज समथिंग, मेरी मेरी अमाउंट गायब हुई है, एंड ही कुडंट गेट दैट अमाउंट। सो मेरे मेरा ख्याल से सेफ्टी, अगर आपके पास कोई ऐसी मार्केट है जिसको आप समझते हैं कि यू कैन अप्रोच इट एंड यू कैन टैप इनटू इट, और आपके पास सेफ्टी है वो मौजूद, आप श्योर हैं, तो आप जरूर करें। बट इसमें एक जो चीज और देखने वाली होती है कि वो ग्रो कितना कर रही है। पी रेशियो का आई डोंट नो सबूर आपको आइडिया है या हमारी ऑडियंस में किसी लोगों को आइडिया होगा। इसे होता है प्राइस पर अर्निंग रेशियो, कि आप क्या प्राइस दे रहे हैं पर अर्निंग की। uh, let's talk about a hypothetical number 4. P ratio is unitless. So 4 4 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 10 होगी, 50 होगी। तो आप चाहे वो पीकेआर के टर्म में बात करें या डॉलर्स के टर्म में बात करें, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक यूएस के शेयर की पी रेशियो 20 है, तो दैट मीन्स यू आर पेइंग $20 फॉर $1 अर्निंग, राइट? हम्म। सो ठीक है। डिफरेंट मार्केट्स में अगर आप देखेंगे, यूएस कनाडा की मार्केट, दे आर सैचुरेटेड, इवन इंडिया इज सैचुरेटेड मार्केट। आप वहाँ की अच्छी कंपनीज को देखेंगे, टाटा को देख लें या आप एप्पल को देख लें, एप्पल की पी रेशियो समवेयर अराउंड 40 to 50 है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन 40 to 50 के दरमियान है। यानी आप $50 पे करेंगे $1 खरीदने के लिए, $1 की अर्निंग के लिए, ठीक है? दो दे आर तो वेरी जितनी कम स्टेबल। पी होगी उतना अच्छा है आपके लिए। यस, यू आर गेटिंग द कंपनी चीप, बट आपकी वो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। यानी उनके पास लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, बिजनेस मॉडल एफिशिएंट होना चाहिए, वो ग्रो कर रहे हों, उनके पास नए एसेट्स आ रहे हों, उनके पास नए बिजनेसेस आ रहे हों। आप ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करें, इन्वेस्ट करें, आई कैन गारंटी यू कि यार वो ग्रो करेगी।
अगर उसके फंडामेंटल्स ठीक है, आपको हो सकता है कि यार इनिशियली थोड़ा सा बम्प मिलेगा, थोड़ी नीचे जाए फिर ऊपर जाए, थोड़ी कंसोलिडेट हो, थोड़ी वो सेम लेवल पे रहे, बट इट विल इवेंचुअली गो अप। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक आपको पॉडकास्ट में यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। एयरलिंक, पाकिस्तान की कंपनी एयरलिंक। हम्म 1 year back, I think, not actually 1 year भी नहीं, it was in August, I think August, yes. I bought Airlink uh, for around 55-56 rupees, ठीक है। अभी इस वक्त दैट इज समवेयर अराउंड, अगर हम इफ जस्ट लेट मी गूगल इट जस्ट फॉर द ऑडियंस, एयरलिंक PSX, it's now somewhere around, as opening, just give me a second, 182 in an year, less than an year, right? अच्छा, इस पे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने खरीदा था एंड मैंने 55 कुछ खरीदा था, 58 पे या 60 के अराउंड में आई सोल्ड इट ऑफ। और देयर वाज अ वेरी कंट्रोवर्सी कि यार एयरलिंक में ना, अगर आप एयरलिंक की फंडामेंटल खोल के देखें ना, तो कंपनी में लोग हायर हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि कंपनी का तो पास बिजनेस ही नहीं है और ये बंदे हायर किए जा रहे हैं। उसका शेयर नीचे आ रहा था, कभी ऊपर जा रहा था। और दे आर वेरी वेरी गुड पीपल इन ऑन द यूट्यूब जिन्होंने कहा नहीं जी, ये कंपनी ने ग्रो करना है, आईटी कंपनी है, बंदे हायर करी तो प्रोजेक्ट्स इन लाइन होंगे। सब कुछ आपकी रिपोर्ट्स में नहीं लिखा जाता, प्रोजेक्ट्स नहीं लिखे जाते, वो डेफिनेटली जैसे जैसे मटेरियलाइज होते हैं फिर आपको चीज लिखे जाते। हम्म नाउ यू लुक एट इट, कितने महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 7 months you got an upside of like 50 and 80, more than 250% profit. सो दिस इज हाउ हाउ द गुड इन्वेस्टमेंट्स ग्रो। अब ये इस तरह की चीजें आपको अमेरिका में नहीं मिलेंगी या कनाडा में नहीं हम्म मिलेंगी। पाकिस्तान की मार्केट जो आप लोग कहते हैं ना, वाइड सेंट्रल एशिया बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केट, उसकी वजह ये है कि अभी यहाँ पे इतनी सेचुरेशन नहीं है। हम एग्जांपल लें, मैं उस दिन आपसे भी पहले भी आई थिंक वी टॉक्ड अराउंड 5-7 months बैक, पाकिस्तान के PSX के अकाउंट्स कितने हैं, लाइक 20-22-25 करोड़ की आबादी है, उसमें मेरे ख्याल से 1-1.5 करोड़ लोगों के पास अकाउंट है दैट एक्चुअली हम्म आइडेंटिफाइज व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी इन दिस मार्केट इज। आप देखें ना, ये जब हम व्हेन वी टॉक लास्ट टाइम फ्यू मंथ्स बैक, PSX was on 90 85 90,000, याद है आपको? हमने we talked about 7 months back where हम्म it is right now. Today, if we talk, luckily we are having this conversation today. Today it touched the highest index in the history of Pakistan. I think 119 plus. एंड लोग कहते हैं ये वोलेटाइल है या कुछ है। देखिए वोलेटाइल जो इंडेक्स होता है ना, वो वोलेटाइल जरूर होता है, बट वो किसी भी मार्केट का असूल है, वो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। ये स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करती, यहाँ गई एंड इट गोज डाउन लाइक दिस, इस तरह काम नहीं होता। अगर वो कैप वाला जो चक्कर है 10%, वो जाएगी यहाँ के रुक जाएगी, फिर हल्की सी ऊपर जाएगी, फिर ऐसे आएगी अगर तो नीचे भी आना है। इट मेक्स हम्म हाइज एंड लोज, तो इट गिव्स यू अ टाइम टू रिएक्ट। अगर कोई कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसमें 100,000 लगाए हैं, वो 95 हो गए, 98 हो गए, तो या तो मैं थोड़ा सा सब्र कर लूं, आई शुड बी श्योर कि 90,000 से नीचे नहीं जाएंगे वो, या उससे नीचे जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगा। मुझे इस तरह की इन्वेस्टमेंट इसलिए पसंद है कि इट्स अ वेरी वोलेटाइल। जो आप बात कर रहे थे ना कि यार मुझे मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, इट्स वोलेटाइल। आपको बायर का वेट नहीं करना, बायर इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, आपने बटन दबाना है, यू गेट योर मनी। सो दिस इज समथिंग वेरी लुक्रेटिव और वेरी डियर टू मी, क्या ये चीज अच्छी है इस मार्केट्स में। तो प्लॉट्स में, रियल स्टेट में ये चीज मुझे सो नजर नहीं आती। या फॉर योर टेस्ट ये उतनी वॉलेटाइल भी है कि यू गेट सम प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, और इतनी सैचुरेटेड भी नहीं है कि यहाँ कुछ हो भी ना। नहीं, इट्स गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, इट्स वोलेटाइल। इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, यू आर इंटरडे ट्रेडर, आप ऑपरेट कर सकते हैं, यू कैन बिकम अ प्रो ट्रेडर इनटू इट। बट इतनी वोलेटाइल नहीं है कि ये आपको हीरो से जीरो बना दे 1 सेकंड के अंदर, जो क्रिप्टो है। क्रिप्टो में अगर आप, हम्म वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन द ऑफिस वाज ट्रेडिंग अराउंड $5,000 इन क्रिप्टो, ठीक है। Unfortunately, there was one bump, and the next morning I talked to him, he was on $200. 200 from 4-5 thousand to 200, it was just one day. So I don't think so कि इतना रिस्क और इतनी टेंशन लेनी चाहिए। वो अगर इफ यू हैड दैट एपेटाइट, आप यू गो फॉर इट। हाँ ठीक है, वो 200 से वापस भी 5,000 पे चला पहुंच जाएगा किसी ना किसी तरीके से, बट यस, क्रिप्टो हैज इट्स ओन चैलेंजेस। तो आई वुड रिकमेंड जो स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारी बात हुई थी, जो अर्ली स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में है या फाइनेंशियल नॉलेज में है,
they should actually focus on the on a more regulated, I would say, and more stable markets, ताकि कंसिस्टेंटली एक आपको ना फ्लो मिलता रहे, आप डिस्करेज ना हो। पहला झटका आपको लगता है ना, अगर आप वो झटका सह गए, तो आप वो जर्नी कंटिन्यू करते रहेंगे। वरना होता ये है कि भी लोग ना डिसहार्ट होके सारे पैसे अकाउंट में रख लेते हैं कि यार आई वुड कीप इट हियर नो मैटर व्हाट। तो वो चीज़ जो है ना, वो आपको आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी नज़र आएगी ना, तो आप बेसिकली यू विल कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट फर्दर। वरना आप यू विल गो बैक एंड पुट योर ऑल द मनी इन द अकाउंट। फिर आप बैंक्स आपके पैसे पे पैसा बना रहे होंगे, आप यू विल एक्चुअली लूजिंग मनी। अंडरस्टूड। थोड़ा सा हम इसको फिर अब कन्वर्ज करने की तरफ भी लेके चलते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड, बिकॉज श्योर, श्योर। टाइम जस्ट फ्लू बाय। इट्स हुँ। बीन ऑलमोस्ट 66 मिनट्स दैट वी बीन कन्वर्सिंग। तो एक चीज़ जिसके ऊपर शायद ही थोड़ा सा रिपेटिटिव हो, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेंटिमेंट। जिस तरह आपने कहा ना, यहाँ पे 22 करोड़ की आबादी एंड अराउंड करोड़ सिर्फ लोग हैं जो कि PSX रजिस्टर्ड है। वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इट कुड बी अ फैमिली, इट कुड बी अवर फ्रेंड्स। एक पीयर प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा फील होता है। सो हाउ डू यू ट्राई कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको, डू यू कीप इट प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग जो आपके नंबर्स कह रहे होते हैं, और देर इज सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल इन्फ्लुएंस इन योर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल? ये मैं काफ़ी अरसे से इसके बारे में पर्सनली खुद भी बात कर रहा था। यू नो मी वेरी वेल, अ वेरी इमोशनल बीइंग, जो कि हम कभी कभार इमोशनल डिसीजंस कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में भी होते हैं। ये जो फियर्स की भी हम बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ उसके साथ भी लिंक था। लेकिन आपकी मुझे इससे भी याद आया कि फंडामेंटल्स में भी व्हेन यू वर्क, यू ट्राई टू वर्क अराउंड अ कंपनी, तो इवन व्हेन इट्स ट्राइंग टू फेल, तो देयर नीड्स टू बी अ लॉजिकल स्टैंड पॉइंट जिसके ऊपर आप खड़े हुए हो, रादर देन एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो कि आप उस स्टॉक या उस इन्वेस्टमेंट में कर जाएं। सिमिलरली एक नेगेटिव बायस भी बिल्ड हो सकता है एक कंपनी के खिलाफ। यू हैव योर फ्रेंड्स, आपको हर तरफ से बैड न्यूज़ मिल रही हैं, और आप इम्पल्सिव बाइंग भी होती है, इम्पल्सिव सेलिंग भी होती है। मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा था कि हाउ टू कीप इट प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिकल, इज दिस समथिंग दैट शुड बी डन, और इमोशनल जो टर्मोइल है उसको किस तरह से इससे रिमूव की करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कैसे? अच्छा, फाइनेंशियल गुरुज ये कहते हैं कि इमोशंस हैव नो प्लेस इन इन्वेस्टिंग, बट मैं इससे थोड़ा सा बैक टू डिफर ऑन इट। आप एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं फोमो, इमोशनल इन्फ्लुएंस आप ख़त्म नहीं कर सकते। अ, मैं अपनी एग्जांपल भी लाइक देता हूँ, ताकि आई थिंक पीपल कैन लाइक अंडरस्टैंड मोर बाय पर्सनल एग्जांपल देते हो तो देयर लाइक इन रिसेंट फ्यू वीक्स देयर वाज समथिंग दैट आई बॉट, एंड आई रियली वांट टू वो मतलब नीचे गया इन्वेस्टमेंट, एंड आई एक्चुअली रिलिंक्विश इट, और मुझे लॉस बेयर हुआ उसमें। अच्छा, दे इसमें एक मेरे साथ एक सीनियर कॉलीग था, उसने कहा यार लाइक आपके स्टॉप लॉस से वो नीचे नहीं गया, एंड यू शुड कीप योर फुट स्टडी, एंड आप उसको रिटेन करें, क्योंकि आप रिटेन कर सकते हैं। लॉस तब होता है जब आप एक्चुअली बेचते हैं, वो लॉस उससे पहले नहीं होता जब हम्म। तक आप नहीं बेचते उसे। तो बट आई डिडंट हियर हिम। मैंने कहा यार मुझे कहीं अच्छी इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, एंड आई 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 टुक दैट शॉट एंड मूव माय मनी फ्रॉम वन इन्वेस्टमेंट टू द अदर इन्वेस्टमेंट। आज की बात करें दैट स्टीम स्टॉक इज समवेयर 30% प्लस, एंड बट आई डोंट लाइक, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि आपको लॉसेस होते हैं और आपको बेयर करना पड़ता है। इमोशंस इमोशन अब मुझे हो रहा था यार काश मैं ना बेचता, या काश मैंने सुना होता, बट ये इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, आपने उस वक्त एवेल्युएट किया, मैंने उस वक्त वैल्यूएशन ली कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ से बेहतर, मतलब उस जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट की मैंने ग्रो की इन्वेस्टमेंट, आई बी ऑनेस्ट, बट शायद वो 30% ना हो। तो ये आपको अपने पास आप इसे लर्निंग ले सकते हैं कि यार मैं कुछ स्टॉक्स होल्ड कर लेता, या मैं उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर लेता। या आप ये बात कर ये अपने लिए एक लेसन ले सकते हैं कि यार मेरे ये फंडामेंटल्स हैं, ये फंडामेंटल्स मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही थी, मेरी जो लॉस ब्रैकेट से ये चीज़ निकल रही थी, मैंने यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाली, नाउ आई स्टैंड बाय दैट माय डिसीजन। तो ये होता है, मतलब इमोशनल फैक्टर इज ऑलवेज देयर, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। बट मैं इसको कहूंगा कि आपको अपनी फंडामेंटल वर्किंग पूरी करें, और वंस यू डू इट, मैं आपको पैसे भी पहले भी हमारी बात हुई इस पर, कोई भी चाहे जिंदगी में कोई भी डिसीजन हो, आप रिस्क वैल्यूएट करें, प्रोज एंड कॉन्स वैल्यूएट करें। इफ एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू से यार ये मेरा बेस्ट डिसीजन आउट है, टेक दैट शॉट एंड डोंट लुक एट
मतलब अगर आपको लगता है कि लॉस हो गया, लॉस नहीं होगा, आपने चीज लर्न की, आप यू विल बी कॉन्फिडेंट, आपने एक डिसीजन ले लिया, और ये इस तरह के डिसीजन आपकी फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आसानी देते हैं। देर आर लॉट ऑफ डिसीजन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अगेन। देयर वाज अ स्टॉक आई वांटेड टू बाय, एंड मार्केट वाज कंसोलिडेटिंग एट दैट टाइम। अच्छा, मैंने कहा यार लूं ना लूं, हो सकता है कल मार्केट नीचे चली है। अब मैंने कहा लेकिन इसकी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मुझे 10-20 रुपए से क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने लॉन्ग टर्म रखना है। आई टुक द शॉट, आई टुक द शॉट अराउंड 11 इन द मॉर्निंग, और आफ्टर लंच आई केम बैक, दैट स्टॉक रोज टू 150 रुपीज इन एन आवर। सो दिस इज सम, दैट वाज अ हम्म लाइक हेफ्टी स्टॉक, बड़ा स्टॉक था, उसकी अच्छी बड़ी अमाउंट थी, मतलब कॉस्टली कॉस्टली स्टॉक था। तो वो विद इन 10% कैप के अंदर ही रहा, 9 पॉइंट समथिंग पे वो क्लोज हुई मार्केट उस दिन। सो दिस इज समथिंग, यस, आप फंडामेंटली आपने डिसीजन ले लिया, और ये आपको ना वैसे भी हेल्प करेगा बीइंग ग्रो एज अ प्रोफेशनल। आपने एक चीज को वैल्यूएट किया, प्रोज एंड कॉन्स लिखे, एक्सेप्टेबल रिस्क लिखा, मूव ऑन। ठीक है, उसमें हो सकता है कभी कभार आपको लॉस भी हो, कभी कभी आपको फायदा भी, बट मोस्टली फायदा ही होता है कि अगर आपकी फंडामेंटली चीजें अच्छी हैं तो आपको फायदा होता है। तो जो आप वाली बात करें ना कि आपको मतलब आपको एक एक्सेप्टेबल इमोशनल डिसीजन इसमें इन्वॉल्व होता है कि यार आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, कि यार ये नहीं सोचना कि यार ये अभी आधे घंटे में लॉस हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, या 2 दिन बाद भेज दूं। अगर आपके वो लेवल्स पे आ गए, आपके फंडामेंटल्स पे आ गए, आपने डिसीजन ले लिया है, आपके एक्सेप्टेबल रिस्क के अंदर है, टेक दैट शॉट। इमोशंस की जगह नहीं आती, फिर इमोशंस आपको जरूर एम्पावर करेंगे, यार नहीं यार मैं कल ले लेता हूँ, या मैं परसों ले लूंगा। वो हो सकता है आपको मार्केट बता के तो ऊपर नहीं जाएगी, जैसे आज नोबडी नोज के टू टच दी मैक्सिमम द एवर ट्रेडेड वॉल्यूम इन पाकिस्तान। लोग ये कह रहे थे कि 118 समथिंग का ना उसका क्या कहते हैं, वो उसे हम कहते हैं लेवल था, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था। इट ब्रोक इट, लाइक 119 पे हम्म हिट हो गई। तो किसी को भी नहीं पता था, किसी ट्रेडर को नहीं पता था, मार्केट मूवर्स, शायद मार्केट मूवर जंप्ड इन जिन्होंने ये काम किया, बट वी यू एंड मी आर नॉट द मार्केट मूवर्स, जो हम लोग जो जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपको अपनी फंडामेंटल्स को और इमोशनल कंट्रोल करना है। आप कोई भी कोर्स कर लें, कोई भी बुक उठा लें, उसमें यही लिखा होगा कि इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, यू विल बी अ गुड इन्वेस्टर। तो इन इमोशंस को आपने कंट्रोल करना है, और ये हर जगह आपको काम आएगा। जैसे आपके इमोशन है ना, यार मैं बिल्कुल सेफ खेलूं, आप बिल्कुल सेफ खेलेंगे, मतलब आप अच्छे, ठीक है, आप 5-10%, 12% बना लेंगे, लेकिन आपको अगर आपने, वो कहते हैं ना, हाई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना हम्म पड़ेगा। रिस्क के बगैर तो कोई चीज नहीं है। मैं हम आई एम इन ऑयल एंड गैस बिजनेस, राइट? हम जब कोई वेल करते हैं तो नो बडी सीज व्हाट्स अंडरग्राउंड ना, तो वी टेक अ रिस्क कि यार नीचे ड्रिल करते हैं, पैसे लगाएंगे, बट होता है बहुत टाइम होता है कि यार कुछ नहीं मिलता, बहुत टाइम होता है यू फाइंड अ वंडर, वो इट पेज ऑफ फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स वे वी डन इन द पास्ट। सो दिस इज हाउ द बिजनेस हम्म इज। आपको अगर आपने पैसे कमाने हैं, आपने इन्वेस्टमेंट ग्रो करनी है, तो रिस्क जरूर लेना पड़ता है। आई थिंक बिल्कुल आई सही। आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yeah, you did very well. So it there is no room for emotions. There should be a logical standpoint. और जो initial working है, you should stick by it. हाँ, और ये मेरा पीछे मुड़ मेरा के नहीं पॉइंट ऑफ देखना व्यू है। इन्वेस्टमेंट में। हाँ, अब जैसे मैं आपको बताऊं ना, हम्म मैंने लॉसेस किए हैं, हेफ्टी लॉसेस किए हैं, मतलब होते हैं, सबके होते हैं। कोई बिजनेस दुनिया में आप बताते हैं जहाँ लॉस ना हुआ हो? कोई भी नहीं होगा। हम्म पहले पहले दिन से कोई पैसे नहीं बनाता। अब पुटिंग क्रूडली, इफ यू गो फॉर एबीसी स्टॉक, आपने अभी लिया ना, अभी लाइक अ सेकंड आपने परचेज किया, अगले सेकंड देखेंगे वो ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। तो आप क्या उस रैटल में आकर उसे बेच देंगे? ऐसा नहीं होता। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपने अभी खरीदा, अगले अगले 1 मिनट में वो 10 मिनट का कैप हो गया, आप बेच दें, निकल आए। इफ इट हिट योर लेवल, या उसे होल्ड कर ले, नेक्स्ट डे बेच दें। और हो सकता है वो हम्म नेक्स्ट डे वो 10% जिससे कैप लगाए वो -10 में चला जाए, ये भी होता है। तो यू जस्ट नीड टू एवेल्युएट के यार फंडामेंटली अगर आपकी वो चीजें पूरी हो रही हैं, टेक आउट और गो इन। तो ये अपना टाइम इमोशंस का फ्रेम भी आपने बिल्कुल। डिसाइड करना है कब तक रखना है, यस, आपने होल्ड कब तक करना यस, है। ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। Coming down to the last few questions, श्योर। मैंने जिक्र किया एंड योर द वे यू स्पीक इट क्लियरली स्टेट्स कि आपने जो भी सीखा हुआ है इट्स मोस्टली बाय एक्चुअली इन्वेस्टिंग, बेयरिंग हेफ्टी लॉसेस और उससे आहिस्ते आहिस्ते चल के सीखा। आई रिसीव दिस सिमिलर मैसेज
some weeks ago as well, because I was talking about this finance on my page as well. मैं ज़्यादातर इसके बारे में बात नहीं करता, because people falsely assume कि आप जो है ना एक AMC की तरह काम करना शुरू कर दिया, and you can handle their cash as well. Like ये इतना बड़ा स्टिग्मा है मुनीब के, यकीन जाने लोग अपना पैसा देने को तैयार हैं आपको कि बस आप ये रख के इसको बढ़ा के हमें वापस दे दें rather than learning about it. हम्म So what would you हम्म suggest them कि जो अभी start कर रहा है, हमने बात की that you should know about the industry, ठीक है, वो they can learn about it, कि गूगल सर्च करना होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. How to learn about fundamentals या technical analysis, इसके बारे में कोई किस तरह ठीक से सीख सकते हैं, और जनरल यार बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग. हम्म अच्छा पहले लेट्स जैसा ये दो डिफरेंट बातें आपने की हैं जनरल रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आई थिंक हमने काफ़ी बात की है देयर आर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स आपको अपना रिस्क एपेटाइट दे के मैं आपसे मतलब आपको चलो जनरल रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करते हैं आपने के एक कॉस्ट बनाना होता है कि यार मैंने 1 मिलियन 2 मिलियन 10,000 वट एवर द नंबर इज जो भी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पैसे हैं ठीक है या आपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आप उसमें से कुछ परसेंटेज स्टॉक्स में डाल दें कुछ दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस दिस इज व्हाट आई डू पर्सनली डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगी मैं क्योंकि रियल स्टेट में आई एम नॉट फेवर इनटू इट तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैं लिक्विड कैश जैसे हमारी बात हुई थी कि लिक्विडिटी पे मोर फोकस्ड होता हूँ आप कुछ स्टॉक्स में डाल दें कुछ म्यूचुअल फंड में डाल दें कुछ टी बिल्स में डाल दें या जो लोग इस्लामिक में जाते हैं वो सुकूक्स में डाल दें और कुछ जो है वो स्टेबल इनकम फंड में डाल दें तो ये आपको मिक्स पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका कुछ पोर्टफोलियो रिस्की पोर्टफोलियो होना चाहिए कुछ पोर्टफोलियो आपका स्टेबल इनकम का होना चाहिए ताकि आप बैलेंस करके चल रहे हो मैं इसको इसलिए कॉम्प्लेक्स थोड़ा नहीं करूंगा कि हमारी मेरी और आपकी पहले बात हुई थी एंड यू एंड आई मे अंडरस्टैंड दैट कि जो जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सीडीसी का सिस्टम किया हुआ है जो एक कैपिटल गेन टैक्स लगता है ऑन कैपिटल गेन तो वेन एवर यू डू अ लॉस फॉर 100,000 का लॉस किया तो 100,000 की सिमिलर ग्रोथ अमाउंट ऑफ मनी पे जो टैक्स कटेगा वो बच जाएगा ठीक है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपना पोर्टफोलियो सेफ इन्वेस्टमेंट और रिस्की इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए कि अगर आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है और आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट थोड़ा लॉस लिया तो उसका जो लॉस है वो आपको टैक्स बेनिफिट जो आपकी ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट है उसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा आपको थोड़ा सा लॉस आपका कम हो जाएगा अब मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता जो लोग हमारे लिसनर्स इंटरेस्टेड हैं दे कैन ऑलवेज लुक सरमाया डॉट टीके की बड़ी एक अच्छी वीडियो पड़ी हुई है दे आर वेरी गुड इन टेलिंग पीपल नॉट प्रमोटिंग देम नॉट लाइक मैं उनका कोई वो नहीं हूँ बट आई यूजुअली लिसन टू देम अच्छी बात नहीं, करते हैं क्लियर जनरली बात करते हैं जितने लोगों से मैंने देखा हुआ जो सीरियसली इन्वेस्ट करते हैं, दे हैव फाउंड दिस टू बी अ गुड रिसोर्स. हाँ मैं खुद अच्छा है क्योंकि मैंने कभी कभार हाँ अगर सुन लूँ ना तो वीकली अपडेट्स वगैरह भी, तो आपको थोड़ी बहुत इंसाइट मिल जाती है कि आप बिल्कुल जीरो पे अच्छा नहीं देते होते. हैं यू नो सम इंसाइट. हम्म हाँ. एक वो है एक सरमायाकार समथिंग है मुझे उसका नाम याद नहीं है there's a guy with a beard he talks very well तो आप सुने यू विल गेट अ गुड आइडिया वो आपको एग्जांपल्स दे के एक्चुअली फाइनेंशियल नंबर दे के ले आएंगे अनफॉर्चुनेटली ये जो सीजीटी वाली बात है ना आई थिंक दिस इज व्हाट मैंने काफी साल इसमें निकाले हैं सरमाया के अलावा किसी ने अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया आई थिंक सरमाया डिड अ वेरी गुड जॉब आई थिंक वी शुड कमेंड देम तो बात खैर हमारी कहीं और डाइसेक्ट होगी हम बात ये कर रहे थे कि यार आपको अपना पोर्टफोलियो मिक्स रखना चाहिए आप अपना कुछ पोर्टफोलियो रिस्की रखें कुछ सेफ रखें और उसके दरमियान लेके चलें और ये स्ट्रैटेजी आपको कोई बना के नहीं देगा ये आपकी पर्सनल फाइनेंस की स्ट्रैटेजी टेक अ वीकेंड आउट मूव समवेयर गो आउट समवेयर गो इन अ कैफे थिंक अबाउट इट कि आपने करना क्या है हाउ यू वांट टू प्रोसीड इट ये हर किसी की पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी होती है पहली बात तो यहाँ पे खत्म होगी सेकंड आपने मुझसे पूछा था कि व्हाट अबाउट टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स राइट हम्म. टेक्निकल्स टेक्निकल्स की बेतहाशा ट्रेनिंग्स इंटरनेट पे फ्री भी मौजूद हैं आप डाउनलोड कर लें मैं बुकिश बंदा हूँ मैं बुक्स पढ़ता हूँ मैंने ऑल्दो अभी टेक्निकल्स की बुक्स कम पढ़ी हैं जो मुझे जरूरत पड़ी है गिव मी the ample amount of information I acquired that from those books. But let's for all listeners, Japanese are the ones जिन्होंने ये स्टार्ट किया था टेक्निकल एनालिसिस तो ये रहेंगी आपको वरना मैं भी सबूर को भेज दूंगा जो मैंने आई फाउंड देम गुड
they really help you out in understanding how the technical works. Technicals is basically, for the people that are listening, is basically you just see the chart, you mark out your levels, you mark out your entry and exit points, you mark the stop loss, you go in the market, you make profit, you come out of the market. So it's kind of a swing trade, it's kind of an intraday trade. आप फिशिंग कहते हैं इसको, आप गए, आपने कुछ पैसे बनाए या लॉस लिया, बाहर आ गए. So this is how the technical works. फंडामेंटल्स की बात करते हैं. फंडामेंटल्स हैव नथिंग टू डू विद द चार्ट्स, इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स, जो कि वी बीइंग इंजीनियर्स आर मोर इंटरेस्टेड, शायद हमारी इंक्लिनेशन भी उस वजह से ज़्यादा है उसमें. Hmm. आप कंपनी के P&L, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ते हो, कंपनी के प्लान्स पढ़ते हो, कंपनी के एजीएम्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो एजीएम्स की कॉल्स आती हैं आपको, एंड यू बीइंग इन्वेस्टर, चाहे आपके पास एक शेयर हो, दो शेयर हो, इट डजंट मैटर, आपको कॉल आएंगे, यू कैन इजीली गो देयर एंड अटेंड इट, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देम. तो आप फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली ये होते हैं कि जो भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल नंबर्स को शो करती है, आप उसको गो थ्रू करते हो, आप देखते हो कि कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, कितनी प्रॉफिट बना रही है, आगे के क्या प्लान्स हैं, कोई इनकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, उनकी अर्निंग ग्रो कर रही है या डिक्रीज करी, उस बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो. डेफिनेटली अगर अर्निंग ग्रो डिक्रीज कर रही है, कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ रही हैं और कंपनी में कोई नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से अपस्ट्रेन करोगे. आप यू डोंट वांट योर इन्वेस्टमेंट टू गो इन अ बिजनेस दैट इज डाइंग ऑलरेडी. तो ये चीज फंडामेंटल्स कवर करती है. फंडामेंटल्स इज बेसिकली, यू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन कि ये बिजनेस अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या मैं इस बिजनेस में पैसे लगाऊं कि नहीं, सिंपली पुट. सो दिस इज द डिफरेंस. आप और ये टेक्निकल जो है ना, जो यूजली फाइनेंस के लोग होते हैं ना, उनसे आप बेहतर समझ सकते हैं. जो पीपल, जो जो लोग एसीसी हैं या आपके कोई कॉलीग्स हैं, कोई दोस्त हैं, उनसे आप बात करें, दे विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग P&L, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हैं. उसमें ज़्यादातर लोग प्रॉफिट P&L अनकंसोलिडेटेड पढ़ते हैं, ताकि उस बिजनेस का, उस कंपनी के आपको ट्रू सेंस पता लग जाए कि वो कहाँ जा रही है. आपको कोई भी फाइनेंस का बंदा, दे हेल्प यू आउट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एसीसी हो, दे आर द पर्सन जो एक्चुअली मेड इट, तो वो आपको हेल्प कर देंगे. सही. तो जो भी ये फॉर एग्जांपल इवन एमबीए फाइनेंसेस वगैरह के होते हैं उनको भी ये पीएनएल अनकंसोलिडेटेड पढ़ लेते हैं. और जो फंडामेंटल्स हैं दैट इज लाइक स्टडीइंग द इंटायर बिजनेस मॉडल, उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज, हाउ मच कैश फ्लो फंडामेंटल्स, डू दे हैव. फंडामेंटल बेसिकली इज अ टेक्निक जिसमें आप कंपनी का ओवरऑल सब कुछ इवेल्युएट करते हो, कितने एम्प्लॉइज, मतलब पूरी उसकी, और वो आप उसकी जो उसकी क्वार्टरली स्टेट, कुछ कंपनी मतलब पीएसएक्स का रूल है, जो भी कंपनी पीएसएक्स में लिस्टेड उनकी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स आती हैं, क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है, उसके अंदर पीएनएल लगी होती है. ठीक है, यूजुअली लोग पीछे का प्रोफाइल पढ़ते हैं कि कंपनी के क्या प्लान्स हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कंपनी के क्या क्या एफिशिएंसी बढ़ाने के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, और फिर पीएनएल पढ़ते हैं. इसको कोरिलेट करके कंपनी का एक अपसाइड निकाल लेते हैं कि यार ये कंपनी आज फॉर एग्जाम्पली 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, इसकी इतनी अर्निंग पर शेयर है, इसका इतना डिविडेंड आएगा, अगर वो कंपनी डिविडेंड देती है तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये कंपनी इधर मैं देखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का शेयर है, ये 150 का हो जाएगा. उसका एक पूरी मैकेनिज्म है, बहुत सारे लोग कैलकुलेट करते हैं, आपको नेट पे मिल जाएंगे. तो ये मेरा 50 रुपीज का गेन मिल जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ में. तो ये 50 रुपीज का गेन इज सम अराउंड 50%. दैट्स नॉट रियलिस्टिक, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नंबर्स, 50% आपको गेन मिल जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ में. दैट इज 100% गेन इन ईयर. तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे. तो दिस इज हाउ. और फिर उसमें 10-5 रुपए ऊपर नीचे आप, फर्क नहीं पड़ता, जो मार्केट प्राइस आप लोग खरीद लेते हैं. जो जितने लोगों से मैंने बात की ना, फंडामेंटली देखते हैं, आज उन्हें कंपनी समझ आ गई, फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपए की है, वो ये वेट नहीं करेंगे 105 की हो या 95 की हो. जब वो मार्केट में एंटर होंगे 10 बजे, यूजली लोग 10 बजे एंटर, आपको मार्केट में बम्प्स नजर आएंगे 10 बजे, वो 10 बजे उठेंगे, हम्म. 10 बजे अपने ब्रोकर को कॉल करेंगे, यार इतनी ये शेयर, ये मार्केट प्राइस पर खरीद लो, इररिस्पेक्टिव क्या मार्केट प्राइस है. तो दिस इज हाउ द फंडामेंटल दिस. टेक्निकल वाले क्या करेंगे, यार ये ग्राफ जो सही. है जब तक नीचे या मेरे लेवल पे नहीं आएगा, मैं बाय नहीं करूंगा. उन्होंने अपने लेवल निकाले होते हैं कि इस लेवल पे परचेज करूंगा, इस लेवल परचेज करूंगा, और फिर इस लेवल पे बेच दूंगा. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स. तो मैं इसको जिस तरह से समझा हूँ, फंडामेंटल्स मोस्टली ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म देख रहे होते यस. हैं, दे जिस तभी उनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता. यस, टेक्निकल नहीं जो है पकड़ता. वो मोस्टली ऑन प्लेन हाइंडसाइट वो इस बेसिस पे चल रहे होते हैं, दे हैव देयर लेवल्स के हमने इतने पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, हमें इतना एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है, एंड दे हैव परहैप्स मोर अंडरस्टैंडिंग कि उनको कितने रेशो पे कितना अर्निंग मिल रही है एज कम्पेयर टू जो फंडामेंटल्स पे खेल रहे हैं. दे नो कि उनको ग्रोथ होगा, एक सर्टेन बॉल पार्क फिगर उनके पास होती है, बट दे नॉट मच श्योर अबाउट इट. यस, ऐसे ही है. ठीक है. ओके.
So we'll converge on one final question from you, Munib. Ready for it? Sure, sure. Yeah, yeah, sure. Okay. What one advice would you have wanted for yourself in your 20s regarding be it financial freedom or personal finance Yeah, that you yourself I'll be. needed? I think I'll be very candid. What I really wanted, कि somebody in when I was in my 20s or my 20 early 20s, some would have कोई होता जो एक्चुअली मुझे गाइड करता कि यार हाउ टू इन्वेस्ट। ये टैबू रहा है और अभी भी है बहुत सारे घरों में, हाउस होल्ड्स में, जो जो लोग ज़्यादा बात नहीं करते, और कोई करता भी है तो उसको कहते हैं यार यू आर टू टू यंग फॉर इट। आई थिंक that need to be changed. World is changing, and if you want to really cope up with the changing world, we need, if you talk about, मतलब मुझसे मेरी प्रेफरेंस पूछे तो मैं ये कहूँगा कि this subject should be the part of the universities. हमारे ग्रेजुएट्स, इवन इवन माई सेल्फ एज वेल, हमें पता ही नहीं था कि फाइनेंशियल फाइनेंस होती क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, हाउ टू एक्चुअली अर्न मनी, इन्फ्लेशन क्या होती है, आप बात नहीं करता कोई, ना यूनिवर्सिटीज में करता है ना घरों में करता है। क्योंकि वो जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है कि somebody is actually paying your fees, वो बाहर ममालिक में नहीं है, तो एक्चुअली वो आप पे सर पे पड़ती है, तो लोग फिर definitely different avenues देखते हैं। But I think we really need to change, as parents, as brothers, as sisters, and as senior colleagues in the industry, हमें आपस में भी बात करनी चाहिए, और लोगों जैसे this is what the soul, I think you pinpointed the very in a very good way, कि आपने उसको जो जो essence था इस सेशन का, कि Oh, definitely. जो हमारे यंग पीपल हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, इवन दे आर इन 30s, लाइक दे मेरे साथ के बहुत सारे कॉलीग्स हैं जो, ठीक है, दे डू सम, मतलब कुछ खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बट दे डोंट नो क्या फाइनेंशियल टारगेट्स क्या हैं, जिंदगी में जाना कहाँ है, इन्वेस्टमेंट के टूल्स क्या हैं, नहीं पता लोगों को 60s में नहीं पता। जो लोग सुन रहे हैं, दे कैन आस्क देयर फादर्स, दे कैन आस्क देयर पीपल अराउंड, पीपल डोंट नो इट। तो आई थिंक दैट शुड बी द थिंग, कि जो चेंज होनी चाहिए हमारी कन्वर्सेशन में भी। हम यूजुअली वी यूजुअली हैव अ कल्चर कि हम जब फैमिली गैदरिंग्स में होते हैं या कोई मीटअप्स पे होते हैं, हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। आई थिंक ठीक है, वो भी, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड दिस इज पार्ट ऑफ द सोशल लाइफ, बट हमें थोड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें भी करनी चाहिए, क्या जो कि हमें लॉन्ग टर्म हेल्प करें। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आई माइट बी रॉन्ग, सम बहुत सारे and I लोग मुझे and I डिसएग्री agree करेंगे। with you. I agree with हुँ, you. मुझे जब फाइनेंस की बात आई, I personally felt as well कि लोग ज़्यादातर कंफर्टेबल हैं to go with the flow. जब रिस्क आएगी नहीं तब लेते। देखी जाएगी। हाँ, नहीं, इंटरेस्ट रिस्क नहीं ही नहीं लेते, लेते, ये भी है। और और दिस इज हुँ, जस्ट दे डू नॉट इवेल्युएट द डू नथिंग सिनेरियो, द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी चीज़ है। दैट बहुत बड़ी वंस यू चीज़ है। अंडरस्टैंड, जिस तरह आपने कहा कि द स्पैन ऑफ दीज 20s to 30s का डिफरेंस आपकी इन्वेस्टिंग में, इट कैन द कंपाउंडिंग इफेक्ट अलोन, चाहे आपको बाद में जाके आप 1 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट गेन कर रहे हो, आपका डिफरेंस 1.5 सीआर का आ जाता है। यस, आराम से आएगा। आप आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वी कुडन्ट शेयर द मैथमेटिक्स ओवर हियर, बट आई थिंक पीपल जो हमें या इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे या बाद में सुनेंगे, दे कैन ऑलवेज डू द मैथ्स। आई वुड सजेस्ट देम कि आप बड़ी मिनिमल अमाउंट 1 लाख रुपए से शुरू करें। 1 लाख सिर्फ एक्सेल खोलें, 1 लाख रुपए लिखें, उस पर 10% इन्फ्लेशन निकालें, और उसमें एवरी मंथ 10,000 रुपये ऐड कर दें, ठीक है? और उस पे ऑन एवरेज 10 ईयर का पर ईयर आप कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगा दें, और आप उस कंपाउंडिंग फॉर्मूले को एक लगाएं 25 साल पे और एक लगाएं 30 साल पे या 35 साल पे। आप देख लीजिएगा कितने मल्टीफोल्ड ग्रो करता है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट टूल आप देख लें, फर्स्ट 5 ईयर्स आर वेरी क्रिटिकल। आप कोई भी, लेट्स टॉक अबाउट इंश्योरेंस पॉलिसी, दो आई वुड नॉट कंसिडर देम एज समथिंग टू इन्वेस्ट फॉर, बट लोग करते हैं। उसमें आपको फर्स्ट 5 ईयर्स में तो कोई बम्प नहीं मिलेगा, आप नेगेटिव में चल रहे हो तो अगर आप उसको रिजॉल्व करोगे, आफ्टर 5 ईयर्स वो आपको प्रॉफिट देना शुरू करता है। उसकी वजह ये है कि वो कंपाउंडिंग में इतना पैसा कमा चुके होते हैं कि वो आपको रिटर्न देना शुरू हो जाती है। So this is how it is. As early as you invest, जो क्रस्ट है सारी डिस्कशन का, as early as you make yourself aware of the financial knowledge, financial instruments, financial methods can help you grow your wealth. Yeah, it's very vital कि अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, और it's earlier the better.
जितना आप अर्ली करेंगे उतनी जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी, उतनी जल्दी आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकेंगे। वरना आप देखेंगे कि जितनी जितनी देर में आप ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करेंगे उतनी ज़्यादा, जैसे सपूर ने कहा, लॉस्ट कॉस्ट ऑफ लॉस अपॉर्चुनिटी यू विल फेस इट एंड यू रियलाइज जब काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो अगर आप लोग अपनी 20s में हैं, 30s में हैं, स्टार्ट विद 500, स्टार्ट विद लेस देन 100, आई डोंट नो, बट स्टार्ट डूइंग, कंसिस्टेंसी लेके आए, कंसिस्टेंटली वो करें, आदत बिल्ड करें। होता ये है कि व्हेन अ यंग इंजीनियर और comes out of the university, he or she gets a decent job, first thing they do is कि buy something luxury that they can afford because they have the money, but उसके उसकी ये नहीं हो सकते कि उनको शायद उनकी इन्वेस्टमेंट जीरो होगी, वो लग्जरी आइटम खरीद के बैठे होंगे और उसके इम्पैक्ट ही नहीं देखते कि अगर वो ये लग्जरी आइटम ना खरीदते, गलती मैंने भी की, लाइक आई डिड द सेम मिस्टेक्स एज वेल, तो आई डोंट वांट कि यार आप लोग भी ये गलती करें। उसका इम्पैक्ट आपको 30 साल बाद, 25 साल बाद लगेगा, यार काश ये मैं इन्वेस्टमेंट राइट जगह की होती और मैं आज कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पहुंचूंगा। अच्छा, इसका ये मतलब भी हरगिज नहीं है कि यू किल योरसेल्फ, बट फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ, लोग ये भी होता है कि यार आई एम अर्निंग फॉर एग्जांपल 100,000 रुपीज अ मंथ, सो आई विल इन्वेस्ट 95,000 अ मंथ। ये भी नहीं करना, बट लाइक जैसे इस्लाम में भी है, मियाना रवि के रखें, बी मॉडेस्ट, मेक अ बैलेंस, ना ओवर किल करें, ना ये करें कि यार मैं सब कुछ आज ही इन्वेस्ट कर दूंगा। टेक अ बैलेंस आउट ऑफ इट, क्योंकि आपने भी आगे जाके एवरीबडी ग्रोज इन द लाइफ, फैमिली बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, बैलेंस होना चाहिए कि यार आप किल भी ना कर दें अपने आप को, यू डोंट, मतलब कुछ नीड्स एंड कुछ नेसेसिटीज, कुछ डिजायर्स के लिए भी सेव करें, बाकी कुछ जो है, जो एक सर्टेन अमाउंट जो भी आप परसेंटेज डिसाइड करें वो इन्वेस्ट कर लें, एंड बी कंसिस्टेंट अबाउट इट देन। I think we could not have ended on a better note. So thank you so much. और जहाँ हमने बात की मैथमेटिक्स की, हमारा पेज है ही इसलिए इन द कमिंग फ्यू डेज आई विल ट्राई कि इसकी हाँ कोई ना कोई मैथमेटिक्स कंपाउंडिंग फार्मूला जो हमारी एक डिस्कशन है जिससे मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा है. तो दिस पेज इज़ अ वे फॉर मी टू लर्न एज वेल फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड प्रोफेशनल्स लाइक यू. और फिर जब मैं अपने नोट्स को थोड़ा सा थरो करता हूँ, आई ट्राई कि मैं उसकी फिर डिस्कशंस को जो है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करूँ ऑन अ फ्यू पोस्ट दैट वी अपलोड ऑन द पेज एज वेल. तो वहाँ से भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस तरह से रिलेटेड चीज़ें यू हम्म, गेट द ग्लिम्स ऑफ इट कि अच्छा नया नया ना कोई डिस्कशन हुआ है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप मुनीब एंड टेकिंग आउट द टाइम आउट ऑफ योर बिजी schedule, especially on a working day. I know नो you have वरीज, a very hectic working schedule, and it was very special that you took out the नो time वरीज, for me. anytime brother. I think a very good session, and I'm always up for such kind of a conversations, especially helping people, and this topic is really near to my heart. मैं तो अपने दोस्तों को, अपने colleagues को, even you, and I met you as well, this was the first topic I really discussed with you. Hmm. You might remember the hike that we had together. The main topic was Yeah. this, and you were in your university. I think I went there for some, हमारी मुलाकात when you were in university, I think you were in your I third was year in or my second third year, year of no? university, हाँ. yes. So I think that's the message I really want to cascade to the young engineers, and it's very necessary. जो मुझे लगता है कि हमारे फाइनेंशियल, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लैक करते हैं. आई थिंक दैट रियली, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने ये सेशन रखा, और आई थिंक वी हैड अ वेरी रियली गुड डिस्कशन आउट ऑफ इट. Yeah, the pleasure is all mine. Once again, thank you so much, and thank you to everybody who joined us. There are some live viewers as well, and to all those who will be watching the recording afterwards, I hope you benefit from it. Once again, thank you so much. Have a good evening, Munib. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. Take care. Allah Hafiz.